चलो सबीन का केस है ना। जी मैम। जी। जी डॉक्टर सबीन, अब शुरू करें। Ma'am, my patient named Shabnam, she is 31 years of age, married to Mr. Faisal, and is educated up to matric, is a housewife. She is married for 5 years. And para 1 plus 0, हम्म। history of laparotomy due to ectopic pregnancy 2 years back. Last menstrual हम्म। period was on 7th of April 2021 and is admitted through the outpatient department of Jinnah Hospital on 20th of April 2021. Today is the second day of admission and is admitted with the complaint of pain in lower abdomen for 8 months and is concerned for her fertility. Ma'am, my patient had menarche at the age of 13 years, and since then she has regular menstrual cycle of 5 by 28 days, and there is no history of dysmenorrhea, dyspareunia, intermenstrual or postcoital bleeding. But now for 8 months, my patient is complaining of pain in lower abdomen, especially during the days of her menses. According to my patient, this pain was gradual in onset, localized to whole of the lower abdomen and whole of the lower abdomen. And according to patient, this was mild to moderate in intensity and mild to moderate in intensity and this pain aggravates on doing household activities and relieves on taking some rest and taking some painkillers. And according to patient, the pain was dull aching in nature, and the pain starts 1 to 2 days prior to the onset of menstruation and aggravates on with each passing day of the menses and becomes maximum up to the last day of the menses when she need to take 2 or 3 painkillers to relieve the pain. For the above mentioned, ma'am, there is, according to my patient, there is no history of any bowel complaint like difficulty in passing stool or any complaint of constipation. There is no complaint of urinary difficulty or frequency, urgency. And according to patient, there is this pain is also not associated with nausea or vomiting. Or there is no complaint of feeling of mass in lower abdomen, lower abdomen, or there is no complaint of swelling of legs. According to my patient, there is no complaint of vaginal discharge and fever with prolonged cough, and there is no history of fever with prolonged cough, and there is no history of vaginal discharge. And according to my patient, ma'am, there is although my patient is giving history of pulmonary tuberculosis in herself in year 2017, but she took the appropriate treatment for this pulmonary TB, and this pulmonary TB had resolved by the end of year 2017, according to patient. And ma'am, according to patient, there is no history of heat or cold intolerance, weight gain or weight loss, diarrhea or constipation. There is no complaint of nipple discharge, and there is no complaint of nipple discharge, visual disturbance or headache, and there is no complaint of weight gain, acne, or hirsutism. And regarding the couple history, this patient is married for 5 years, and this is the first and non-consensuous marriage of the couple, and they are living together with a coital frequency of 2 to 3 times per week. Since the beginning of our marriage, the patient had no complaint of any coital difficulty, but now for the past 8 months, my patient is complaining of pain during coitus. And according to patient, this is a deep dyspareunia, and remains for 2 to 3 hours after the act of coitus. And because of this, and she need to take some oral painkillers after the act of coitus because of the pain. And according to patient, because of this difficulty in coitus, her coital frequency has also reduced to once per month. And madam, regarding her husband's history, her husband is 35 years of age, non-smoker, non-addict, laborer by occupation, and there is no history of recurrent urinary tract infection or diabetes.
chronic renal disease, chronic liver disease, chronic renal disease, chronic liver disease, childhood mumps, or there is no history of inguinal surgery, use of drugs, steroids, trauma, or radiotherapy. Ma'am, for the above mentioned complaint, my patient above mentioned complaint of pain during menstruation. My patient went to the hospital where the doctor get in with her ultrasound and saw and described to the patient about some mass in her mass in her abdomen, and also advised and according to the patient, the doctor advised her some a medication which the name of which was known to the patient, that was tablet Diane 35, which the doctor advised her to take twice per day and for 6 months. And my patient was regularly using this medicine for 6 months, but the doctor once the doctor and when she went to the doctor again and the doctor get done with her ultrasound, the size of the mass was increased. So the doctor referred her to Jinnah Hospital and she came to the OPD for her further management and evaluation. Madam, her gynecological history has already been explained. There is no history of any pap smear taken, and there is her she has never practiced contraception. And regarding her obstetrical history, she conceived after 3 years of her marriage, and according to and when she missed her periods, but then she experienced lower abdominal pain and vaginal spotting, for which she went to the hospital, and where her urinary pregnancy test was done, and pregnancy was confirmed. But according to patient, that was an ectopic pregnancy, and for that she underwent a laparotomy, and her one tube has been removed according to patient. And madam, regarding her medical history, the patient, there is no history of diabetes, hypertension, ischemic heart disease, or chronic renal or liver disease, but my patient has given history of pulmonary TB in 2017, which according to patient is cured. Regarding her surgical history, my patient had a lump in her breast in year 2016, and her surgery was carried out to remove the lump, and since after that, according to patient on the histopathology report, that was a benign mass, and since after the surgery, patient has no complaint regarding her breast lump. And madam, she is a non-smoker, non-addict, and she is non-smoker, non-addict with normal sleep and appetite, and there is no history of with good sleep and appetite and normal bowel habits. And according to my patient, she is not allergic to any drug. Blood transfusion has never been done in my patient, and blood transfusion has never been done. And regarding her socioeconomic history, her husband is a laborer and is the only earning member of the family, and having 4 dependent members, and lives in her own home of 2 bedrooms, and basic necessities of life are met with ease. And madam, on examination, a young lady sitting comfortably on the couch, answering intelligently to my answers, and oriented with time, place, and person, and having body mass index of 23 kilogram per meter squared. And on examination, her pulse was 85 beats per minute, regular good volume, and pulse was blood pressure was 120 by 80 millimeters of mercury. Respiratory rate was 18 breaths per minute, and she was afebrile at the time of examination. On general physical examination, there was no pallor anemia, there was no pallor, jaundice, cyanosis, clubbing, chylomicronia. Orodental hygiene was satisfactory. Thyroid was not enlarged, and thyroid was all accessible lymph nodes were not palpable. And madam, accessible lymph nodes were not palpable. And on respiratory examination, breast examination, breasts were bilaterally normal looking, having a scar mark in the left inner quadrant, and that was consistent with the history of some surgery for her lump. And otherwise, the breasts were bilaterally normal looking with no mass or tenderness palpable in any quadrant. And on respiratory examination, normal vesicular breathing with no added sounds. And
And cardiovascular examination, S1 and S2 were audible with no added sounds. Abdominal examination, abdomen was fat, moving symmetrically with respiration, and umbilicus was centrally placed with inverted margins, with no mass or tenderness palpable in all the in any quadrant of the abdomen, and hernial orifices on cuff impulse were found to be intact. And madam, on vaginal examination, vulva was normal looking with normal distribution of hairs, with no blood, mucus, or discharge trickling through the os. And per speculum examination, the cervix was central, and there was cervix was central and normal looking, and pap smear taken. And madam, on bimanual examination, uterus was 8 weeks size, retroverted with restricted mobility and tender, and having palpable induration or nodules in the vaginal walls, and uterosacral ligament. Cystic mass of about 8 into 10 centimeter is felt through the right fornix that was tender to touch and had restricted mobility. मैम आपका म्यूट है माइक. हाँ ठीक है, चलें. ठीक है, ओके. आगे हम अभी पहले मेरा ख्याल है जल्दी से 10 मिनट्स हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं, फिर आगे करें. आपका जो पूरा आपने किया है, यू स्टार्टेड एट 11:01 एंड कंप्लीटेड एट 11:11. 10 मिनट्स आपने लिए प्रेजेंटेशन में, तो 8 मिनट पे तो बेल वैसे ही बज गई. उस वक्त आपने एग्जामिनेशन स्टार्ट किया था जनरल फिजिकल, यू वर टॉकिंग अबाउट बीएमआई, जब आपके 8 मिनट पूरे हो गए थे. तो ये बिल्कुल ही गलत बात है. उसके बाद जब बेल बज गई तो बेल बज गई, आपका केस वहीं खत्म हो गया. ठीक है ना? तो कोई लीनियंसी इस टाइम पे तो है ही नहीं. एग्जाम में 8 मिनट्स तो आपने वो अपना टाइम प्लीज मैनेजमेंट ठीक करो. इसमें एक जो बात ही क्लैरिटी, तो इट वाज गुड, यूर आपकी क्लैरिटी और वो सारी स्पीच वाज फाइन, बट जो आपके टाइम ज्यादा लगे ना, वो रिपीटेशन ऑफ थिंग्स की वजह से लगे. I don't know why you were repeating things so much. You said she had history of laparotomy, then again you said she had history of laparotomy. एक ही बात को दो दो दफा दोहराने, मतलब you were taking too much of time but giving less information. तो ये नहीं, अपना अपना स्पीच को फ्लुएंट करने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत है. देन यू डोंट रियली नीड, एग्जाम के अंदर देयर इज नो मैडम एंड नथिंग लाइक दैट. आपने उन्हीं के लेवल पे बैठ के बात करनी है. आप वो केप्ट ऑन सेइंग मैडम मैडम मैडम. नो, देयर इज नो पॉइंट इन यूजिंग सच वर्ड्स. आपने वहां सीधा सीधा अपना केस प्रेजेंट करना है. मे बी आपको उस मैडम से ज्यादा ही पता है इस वक्त. ठीक है ना? तो आप, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, और आपका बॉडी लैंग्वेज और स्पीच पर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस तरह की बातें करने में. 8 मिनट में बेल बज गई, एग्जामिनर ने एक भी आगे लफ्ज नहीं सुनना. ठीक है ना? वहीं पे बेल बजी, वहीं बात खत्म. जब आप एग्जामिनेशन ही नहीं बता सके तो आपका केस कैसे पास हो सकता है? केस नहीं पास हो सकता. सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपने इसका एक तरीका है, मैं आपको एक टिप देती हूँ सबीन. आप खैर अभी तो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकोगे, लेकिन आप अपना जब भी कोई केस लो प्रेजेंट करो, आपको 1 हफ्ता लगेगा इस फ्लुएंसी को अचीव करने में. अपने मोबाइल पे अपनी आवाज रिकॉर्ड करो, अपना केस खुद ही अपने आप को प्रेजेंट करो मोबाइल में रिकॉर्ड करके, और फिर उस आवाज को सुनो. देन यू विल अंडरस्टैंड कि कितना इरिटेटिंग होता है जब आप एक ही सेंटेंस को बार बार बोलते हो कि शी हैड लैम्प इन ब्रेस्ट, और फिर उसी सेकंड में दोबारा बोलते हो शी हैड लैम्प इन ब्रेस्ट. मतलब there's no point in repeating things. ये आपका अंडर कॉन्फिडेंस शो करता है. तो अब आपकी फ्लुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर केस, उसके लिए आपने अपना ये नहीं कि अपने आवाज खुद मोबाइल में रिकॉर्ड करो. 1 हफ्ता ऐसे करें, फिर उसके बाद देखते हैं इंशाल्लाह कितना बेहतर हो जाएगा. अच्छा, देन द होल केस वाज, अदरवाइज इंफॉर्मेशन आपने अच्छी दी है हिस्ट्री में. थोड़ा सा आपका सीक्वेंस ठीक होने की जरूरत है चीजों का. आई थिंक के पॉइंट्स आपने सारे कवर किए हैं, विच इज वेरी गुड. सब फर्टिलिटी को लेकर, और इफ यू वर रियली थिंकिंग, अगर आपका डायग्नोसिस इज मोर टुवर्ड्स एंडोमेट्रियोसिस, और जो भी आपके माइंड में, आप यू वेंट वेरी वेल एक्चुअली, बट आपकी जो है ना सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वाज नॉट करेक्ट. सबसे पहली चीज, जब आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की, देखो कुछ अननेसेसरी बातें आप गलत जगहों पे बोल रहे हो, जिसकी वजह से आपने टाइम अपना, बहुत ज्यादा फर्क है 10 से 11 मिनट को 8 मिनट में लाना, और वो भी गायनी की हिस्ट्री में. ऑप्स की हिस्ट्री तो इससे भी लंबी होती है, बिकॉज उसमें एक तो एंटीनेटल हिस्ट्री और फिर प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री कितनी लंबी. तो गायनी की हिस्ट्री तो इतनी लंबी लेती नहीं है. आपका एक पूरा सेगमेंट होना चाहिए एग्जामिनेशन के ऊपर बात करने के लिए. इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. गायनी में तो हिस्ट्री के साथ एग्जामिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो
आपने कुछ अननेसेसरी बातें आप गलत जगह पे कर रहे थे. जैसे यू सेड इन द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट दैट इट्स हर सेकंड डे ऑफ एडमिशन. देयर वाज नो पॉइंट इन सेइंग दिस इन द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट. प्रेजेंटिंग कंप्लेंट वो बात है या वो मोमेंट है एग्जाम का जिसमें तकरीबन फैसला हो रहा है कि आप पास हो गए या फेल हो गए एग्जाम में. सीरियसली मैं आपको ये बता रही हूँ. आप जब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बोलोगे जो 2 लाइनों में आपने बोलना है, उससे सीधा सीधा एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि आपको पता है कि आपका केस के आगे अगला जो 1 घंटा आपका गुजरना है एग्जामिनर्स के साथ, वो किस चीज पे बात करके गुजरना है. अगर आप उसके अंदर 2-4 एक्स्ट्रा बातें ऐड करोगे ना, तो एवरी वन विल बी इरिटेटेड. एक आधा एग्जामिनर शायद आपकी इंपॉर्टेंट बात सुनना ना सुने आपकी अनइम्पोर्टेंट बात की वजह से. इफ यू आर सेइंग इट्स अ सेकंड ऑफ एडमिशन, नोबडी, आई मीन लाइक, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट कैसे क्या ताल्लुक. प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हैज टू बी वेरी मच फोकस्ड और इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ये हम एमबीबीएस से सीखते आ रहे हैं कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए. हाउ कैन यू से दैट पेन लोअर एब्डोमेन फॉर 8 months वाज देयर बट शी इज कंसर्न्ड अबाउट फर्टिलिटी? नो. व्हाट इज ये तो केस ही सब फर्टिलिटी के बेसिकली. उसको तो ना पेन मैस फील हुआ है हिस्ट्री के अंदर, पेन के साथ वो आई है, बट सब fertility is also there. पैरा 0+1 है, मैरिड फॉर 5 years एंड शी इज 31 years ऑफ एज. तो आपने अगर आप यूं कर दो कि ठीक है लास्ट उसकी सेकेंडरी सब फर्टिलिटी है, लास्ट उसने कंसीव किया था 2017 में फॉर एग्जांपल, आपने बताया वैसे हाँ 3 years आफ्टर मैरिज. तो आपने तो शी इज अनेबल टू कंसीव या शी वांट्स टू कंसीव फॉर लास्ट 2 years एंड पेन लोअर एब्डोमेन फॉर 8 months. ठीक है ना. फिर उसके बाद आप शुरू करोगे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, क्योंकि अब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस आपने कैसे शुरू करा. आई डोंट नो व्हाई यू स्टार्टेड ऑफ विद द पीरियड्स. इसमें मतलब आई डोंट नो आप उसके एवरेज फ्लो, ये पहला स्टेटमेंट क्यों था कि उसकी मिनार्की की एज क्या थी. ये तो बिल्कुल भी पहला स्टेटमेंट नहीं बनती. ये तो तब आप, चलो फिर भी मैं वैसे ना मानती, लेकिन चलो अगर आप सब फर्टिलिटी के साथ एच1बी की हिस्ट्री होती तो भी मैं एक्सेप्ट कर ही लेती किसी तरह के आपने पीरियड से स्टार्ट करती पहले बात. तो पेन है और फर्टिलिटी है, इसमें पहली लाइन एचओपीआई की मिनार्की, एज ऑफ मिनार्की कैसे हो सकती है. आप उसकी शुरू करो. अगर आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शुरू करना है तो आपको हिस्ट्री प्रेजेंट करना ज्यादा आसान हो जाएगा. यू स्टार्ट ऑफ विद हिस्ट्री ऑफ सबफर्टिलिटी एंड देन यू विल कम टू पेन, जिसमें आप कॉज ऑफ सबफर्टिलिटी को कोरिलेट करोगे विद पेन. जैसे कि इसको डिस्पारोनिया और प्रोबेबली एंडोमेट्रियोसिस है जैसा आप बता रहे हो. बट एट द वेरी सेम टाइम आपने उसकी हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना है. फिर उसके बाद आपका आता है बाकी का जो सारा हस्बैंड की हिस्ट्री है वो सब. सब फर्टिलिटी की हिस्ट्री पे हम बड़ी दफा बात कर चुके हैं. एक जल्दी से, बिकॉज एज वी आर टॉकिंग अबाउट द सीक्वेंस ऑफ हिस्ट्री, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जिस तरह हमने बात करनी है उसमें सब फर्टिलिटी में क्विकली आपको बता देती हूँ. यू कैन स्टार्ट ऑफ विद द marriage of the couple, first marriage, their coital frequency and the coital difficulties. हस्बैंड इज लिविंग विद हर विद हिज वाइफ या ही इज लिविंग अब्रॉड, वो आपने मेंशन जरूर करना है. उसके बाद आप फौरन से बात करते हो अबाउट द रिपोर्ट्स कि हस्बैंड सीमेन एनालिसिस, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और ट्यूबल पेटेंसी हैज बीन चेक. इसकी वजह ये होती है ताकि उससे रिलेटेड स्पेसिफिकली बात शुरू कर दे. एंड देन यू नो शी हैज हिस्ट्री ऑफ पेन. You can correlate with this with pain with her subfertility. आप पेन को पूरा, पेन की भी मैं आपको हिस्ट्री बताती हूँ जिस तरह आपने प्रेजेंट किया उसको किस तरह करोगे प्रेजेंट. पेन को आप सारा एलैबोरेट करके उसके बाद आप बेशक उसके पीरियड्स को की बात करो, क्योंकि पीरियड्स का ताल्लुक हो सकता है सब फर्टिलिटी से एनोवुलेशन पे, बट ऑब्वियसली यू नो देयर इज अ कॉज, आपको मिल रही है सब फर्टिलिटी की कॉज. और एट द वेरी सेम पॉइंट आपने यहीं पे उसकी ट्यूबरक्लोसिस को एम्फेसाइज करना है, आपने यहीं पे उसकी प्रीवियस लेप्रोटमी को करना है. आपने देखो जब आप एग्जाम में बता देते हो कि शी हैड प्रीवियस लेप्रोटमी बिकॉज ऑफ रप्चर्ड एक्टोपिक या बिकॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड गॉट हर सेल्फ इंजेक्टमी डन, बात वहां खत्म नहीं होगी. उसको इन शॉर्ट आपने वहीं पे पूरी स्टेटमेंट देनी है ना कि अव्वल तो मुझे आपकी इससे बात से पता ही नहीं चला कि रप्चर्ड एक्टोपिक और नहीं थी, या थोड़ा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बता देते उस टाइम पे उसकी रिकवरी स्मूथ थी नहीं थी, पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स क्या था, क्या पता उसी वक्त वो 2 दिन बाद रीओपन हो गई हो, क्या पता हफ्ते बाद रीओपन हुई हो पेशेंट पास के साथ, तो शी हैड स्मूथ रिकवरी. ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. ये आपने जब भी सर्जरी का जिक्र करना है तो उसके साथ ही आपने ये जरूर बता देना है कि उसका पोस्ट सर्जिकल रिकवरी है वो सारा कुछ कैसा था. तो ये आपने कर देना है. ठीक है. उसके बाद आप एक जनरल जो फर्टिलिटी की हिस्ट्री होती है जिसके अंदर फीमेल की हेड टू टू हिस्ट्री होती है, बिकॉज आपने उससे पहले एकदम से निपल डिस्चार्ज, थायराइड की हिस्ट्री, देयर वाज कोई रिलेशनशिप बन ही नहीं रहा था. इट वाज जस्ट अ हिस्ट्री ऑफ एनी
आप फर्टिलिटी के पॉइंट्स पूरे कर रहे थे, बट फर्टिलिटी के पॉइंट्स नहीं ना पूरे करने, आपने उस मरीज से रिलेटेड हिस्ट्री बता दी है। तो जो नो वाली और बिल्कुल ही लेस सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है, जैसे निपल डिस्चार्ज, या फिर यू वर टॉकिंग अबाउट थायराइड सिम्टम्स, या वो सारे, वो फिर एंड पे नो कर दो जल्दी से। लेकिन जो मेन बात है उसको तो फिर बहुत ज्यादा एलैबोरेट करने की जरूरत है, ताकि पता चले कि आपके लिए वो चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड देन फिर मेल की हिस्ट्री, क्योंकि इसके अंदर फीमेल की हिस्ट्री बहुत सिग्निफिकेंट है, स्पेशली फीमेल। इफ द पेशेंट इज सेइंग, जैसे मैंने कहा है कि शुरू में ही आपने पूछ लिया, उसके हस्बैंड सीमेन एनालिसिस, अल्ट्रासाउंड और ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, अगर वो शुरू में ही बता देती है कि हस्बैंड की रिपोर्ट भी ठीक नहीं है, तो फिर टीबी की हिस्ट्री, प्रीवियस लेप्रोटमी की हिस्ट्री के बाद पहले हस्बैंड की हिस्ट्री आएगी, उसके बाद फर्दर उसकी थायराइड सिम्टम्स, प्रोलैक्टिन और वो सारी चीजें बाद में आ जाएंगी। तो आपने उस पेशेंट में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना पास होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं रह जाता। ताकि पता चले कि आप उस मरीज से रिलेटेड बात कर रहे हो ना। ठीक है, आई होप के मैं आपको क्लियर हो रहा है जो कह रही हूँ कि किस तरीके से आपने चलना है। देन पेन, बिकॉज मेन पर्पस जो था पेशेंट का फॉर कमिंग टू द हॉस्पिटल वाज पेन। पेन को बहुत ही प्यारे तरीके से बताना है। जैसे ही आपने पेन बताना शुरू किया, देखो जब पहली चीज आप बोलोगे ना, किसी किसी भी चीज में, इवन हिस्ट्री में जो पहली चीज आप बोलोगे, या फिर आप मैनेजमेंट में जो पहली चीज बोलोगे, या फिर आप बेसलाइन के बाद इन्वेस्टिगेशन जो पहली मांगोगे, वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। उससे पता चलता है कि आपकी प्रायोरिटाइजेशन किस तरह से है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ पेन, आपने सबसे पहले बावल की बात करना शुरू कर दी कि शी डजंट हैव एनी बावल। दिस शोज योर कैजुअल बिहेवियर ना। भाई हम गायनोकोलॉजिस्ट को क्या पड़ी बावल की बावल बाद में आएगा, गट की बात में बात होगी, पहले आप गायनी की बात करो, फिर आप ज्यादा से ज्यादा यूरिन की बात करो। ठीक है, अगर यूरिन और गायनी आपने रूल आउट कर लिया, तो फिर आप गट की बात करो ना। वही बात है, जो चीज लेस सिग्निफिकेंट है उस पेशेंट में, वो सबसे एंड पे आएगा। जिस तरह मैंने फर्टिलिटी में कहा है कि अगर आपके ख्याल से थायराइड, प्रोलैक्टिन, उस चीज नॉट प्रेजेंटेड विद सच कंप्लेंट्स, और उसका कोई रिलेशन इतना बन नहीं रहा उससे, तो वो चीजें एंड पे आएंगी। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पेन, कैन यू डोंट, हाउ कैन यू स्टार्ट ऑफ विद गट एट द वेरी बिगिनिंग? आपने गट की बात की, फिर यूरिन की बात की, फिर आई डोंट नो व्हाई यू इमीडिएटली ऑल ऑफ अ सडन टॉक्ड अबाउट नोजिया एंड वॉमिटिंग। उसके बाद कहीं जाके आपने पीरियड्स की बात की, फिर देन यू इमीडिएटली थॉट ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज, फिर वेजाइनल डिस्चार्ज की बात करते करते ही फीवर का। देयर वाज नो सीक्वेंस एट ऑल, आपका कोई बन ही नहीं रहा था। पेन पेन आप किस तरह बता रहे हो आपकी हिस्ट्री से? हाँ जी, जी सबीन। Madam, I explained all the features of pain that it was dull aching टीचर था, सर फिर इतने अच्छे बताए थे, वो severe तो था। बहुत अच्छा बताया, फिर बट मैडम जब आप उसको कॉजेज रूल आउट एसोसिएशन, कर रहे हो, हाँ जब उसका आप, एसोसिएशन बताया कि इट वाज गुड, नॉट ठीक एसोसिएटेड है, विद, जैसे एंडोमेट्रियोसिस में हमारे बावल और यूरिनरी कंप्लेंट्स, बाद डिसयूरिया, में, डिस्किनेसिया भी होता है। वो बाद में, फिर आप स्पेसिफिकली पहले आप बताओगे उसका एग्जैक्ट रिलेशन विद पीरियड। सबसे यू स्टार्ट ऑफ विद दिस पेन की आपने बड़ा अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि इन द लोअर एब्डोमेन रेडिएटिंग टुवर्ड्स बैक, किस तरीके से सेटल डाउन होता है जी, यानी यू टोल्ड अबाउट द मेडिकल मैनेजमेंट एंड ऑल दैट शी नीडेड। यू इवन टॉक्ड अबाउट डिस्पैरूनिया, बड़ा अच्छा आपने बताया क्वाइटरी फ्रीक्वेंसी में। बट देन उसके पहले आप पीरियड्स, देन यस यू कैन टॉक अबाउट ओके फाइन vaginal discharge, बट देन यू कैन रिलेट दिस पेन विद बाबा। आप कहोगे कि देयर इज नो पेन ड्यूरिंग पैसेज ऑफ स्टूल्स, यूं करके बात करो, ना कि आप बात करो कि देयर आर नो बाउल सिम्टम्स। ठीक है ना? और फिर आप, ठीक है, जब वो रूल आउट हो गया, देन यू कैन रूल आउट यूटीआई लेटर ऑन। यस ओके, अब ठीक है, फीवर कफ को आप रिलेट करना चाह रहे थे आई थिंक ट्यूबरक्लोसिस के साथ, लेकिन वो बात आपने तब करनी है जब आपने शुरू में सब फर्टिलिटी के अंदर टीबी को एक्सप्लेन किया, तभी आप बता दो कि एट द मोमेंट शी डजंट हैव एनी एनी हिस्ट्री ऑफ कफ और फीवर और उस तरह का, फिर तब बता दोगे। तो तब तो वही वो रूल आउट हो गया ना। तो ये करना है, ठीक है। और फिर जब आपने, ठीक है, एंड देन यू टॉक्ड अबाउट मास लोअर एब्डोमेन एंड ऑल दैट, वो ठीक है। लेकिन वो आप सही कह रहे हो, एंडोमेट्रियोसिस में कट के साथ आप रिलेट कर सकते हो, लेकिन लगा ही कुछ यूं कि आप शायद आईबीएस और बावल सिम्टम्स को रूल आउट करना चाह रहे हो। तो वो सीक्वेंस इसके सही करने की जरूरत है। डिस्पैरोनिया, तीनों चीजों को मैडम एक साथ कर रही थी कि एक तो डिस्मेनोरिया हो गया, और हम्म, फिर डिस्यूरिया, और फिर डिस्पेरोनिया, फिर दिन हाँ, मैं उसके जो है वो वजाइनल डिस्चार्जेस और मास के ऊपर चली गई फिर थी। ठीक है, लेकिन इसमें आपने यूं करना है कि पहले आपने पीरियड्स के साथ रिलेशन बताया, फिर आपने पेन वाइल पैसेज ऑफ स्टूल एंड इंटरकोर्स की पेन,
बता दी। उसके बाद आप जब ये गायनी की सारी बातें कर ली हैं, देन यू कैन रूल आउट। फिर आपने यूटीआई की बात करनी है कि पेन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, बर्निंग बर्निंग मिक्चुरेशन, और वो सारी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, और वो सब आपने मेंशन करना है, ताकि पता चले कि जो पहले आपने बात की है वो गायनी से कोरिलेट की है। उसके बाद आपने पेन, क्रॉनिक पेल्विक पेन की बाकी कॉजेज रूल आउट करनी है, विच इंक्लूड्स बावल सिम्टम्स, यूटीआई सिम्टम्स, एंड देन मसल मसल पेन। ठीक है, जो कि पोस्चर के साथ हम उसे रिलेट करके बताते हैं। तो पेन जब भी आपने डिस्क्राइब करनी है वो इस तरीके से, मैं एक दफा फिर जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले फीचर्स ऑफ पेन, जैसे कि सबीन ने बताया सारे, कि लोअर एब्डोमेन में रेडिएटिंग टुवर्ड्स द साइड, डल है, कोलिक है या नहीं है, वो सारा। फिर जब आपने पेन सारी बता दी, मेडिकल ट्रीटमेंट से कैसे या पोस्चर से रिलेशन कैसे, यही पे बता दिया। नंबर 2 के अंदर आपने उसका डीडी रूल आउट किया। डीडी रूल आउट करने में हमने सबसे पहले गायनी की बात की, पीरियड से कोरिलेट किया इसको, कि पीरियड स्टार्ट होने से पहले शुरू होती है और जब शुरू हो जाते हैं तब खत्म होती है, या फिर पीरियड के फर्स्ट डे से शुरू होती है और विद टाइम बढ़ती जाती है, और खत्म कैसे होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, पीरियड से रिलेट करके उसका आपने यानी डिस्मेनोरिया इन अदर वर्ड्स एक्सप्लेन कर दिया। फिर आपने डिस्पेरोनिया एक्सप्लेन कर दिया। फिर आपने उसका स्टूल डिस्टेक्सिया एक्सप्लेन कर दिया। और ये सारा तो अब गायनी से रिलेटेड हो गया। तीसरे नंबर पे अब बाकी कॉजेज ऑफ क्रॉनिक पेल्विक पेन, विच में इंक्लूड द गट सिम्टम्स, यानी बावल सिम्टम्स, जो कि कॉलिकी पेन से रिलेट करके होंगे, और फिर यूटीआई के सिम्टम्स आपने रूल आउट करने। एंड देन अगर उसके अलावा आपको कुछ और लग रहा है, जैसे सभी ने मेंशन किया नोजिया, वोमिटिंग, फिजियाट, प्रीवियस टॉपिक, एडहेजन और वो सारा, तो उसने कहा चलो उसको भी साथ रूल आउट किया, विच इज गुड। और वो जो माइनर डीडी की बातें बन जाती हैं, तो वो सारी आपने कर लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पेन को एक्सप्लेन कर देना है। तो आई थिंक कवर सब कुछ हुआ है हिस्ट्री में। फ्रैंकली कोई नई चीज मैंने ऐड नहीं की, लेकिन इसके अंदर सीक्वेंस ठीक करना बहुत जरूरी है, ताकि आपका जो वाइवा है वो इस बात से शुरू ना हो कि इसका उससे क्या रिलेशन है, इसका उससे क्या रिलेशन है। इंस्टेड के डीडी और उससे आगे की बातों से बात स्टार्ट हो। देन एग्जामिनेशन वाज अगेन, यू एक्चुअली कवर्ड एवरीथिंग, बट आपकी स्पीड बहुत स्लो थी। आपका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन इतना लंबा हो गया कि जब असल एग्जामिनेशन आया तब तक वैसे ही बंदा जो है ना वो सोच आ चुका हो, बिकॉज यू वर वेरी स्लो। आप जरा थोड़ा सा तेज बोलो, एंड यू वर रिपीटिंग थिंग्स। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ठीक है, इसमें थोड़ा इलाबोरेटेड था बिकॉज इसकी हिस्ट्री ऐसी थी, बट देन अगेन थोड़ा यू नीड टू स्पीड इट अप ना इसको। अब यू वर वेरी वेरी स्लो एक्चुअली, और रिपीट कर रहे थे चीजों को। लेकिन अगेन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जब गौर से सुना तो बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं था। यू मिस्ड मेनी थिंग्स, और आपने कुछ आप ना कैजुअल उसमें बोल जाते हो। यू सेड एब्डोमेन वाज फैट। नो, वी नेवर टॉक लाइक दैट। हम कहते हैं कि प्रोट्रूबरेंट था, या नहीं था, या फ्लैट था, स्किफॉइड या स्किफॉइड स्किफॉइड मैम। था, या वो फ्लैट था। मतलब आपका ना ये जो, अगर आपका कैजुअल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए था, यू हैव टू बी। फ्लैट फ्लैट अच्छा, एब्डोमेन वाज फ्लैट, ओके, मुझे लगा एब्डोमेन वाज फैट, तो आई रियली डिडंट लाइक इट। और मैं भी कहने लगी थी कि वो बीएमआई के हिसाब से इतनी बेचारी लग नहीं रही। ठीक है, चलो फ्लैट था। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा तो फिर अब आप कुछ चीजें मिक्स कर रहे थे। यू वर मिक्सिंग इंस्पेक्शन विद पैल्पेशन, जो कि काफी बड़ा ब्लंडर हो जाता है। आपने यू टॉक्ड अबाउट इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन करते करते आपने कहा कि सुपरफिशियल डीप टेंडरनेस, उसके बाद फिर आपने इंस्पेक्शन की कुछ बातें मेंशन की। तो इस तरीके से नहीं, आपने जब पहले पूरी इंस्पेक्शन कर लेनी है तो फिर आप आओगे पेल्पेशन पे। एंड देन अगेन इंस्पेक्शन के अंदर यू डिडंट टॉक अबाउट हर प्रीवियस स्कार। जो लिप्रोटमी का स्कार था वो बड़ा जरूरी था, कि मिड लाइन है या फेनन स्टील है, उससे हम एंटिसिपेट कर सकते हैं उसकी एडिशन। देन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ पिछली क्लासेस में कि नो साइंस ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन एब्डोमेन, हमने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में ही बात करके जाना है, क्योंकि इफ यू मिस दिस स्टेप इन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एंड नाउ इन पेल्विक एग्जामिनेशन यू आर फाइंडिंग 8 सेंटीमीटर मास, 8 to 10 सेंटीमीटर मास, तो फिर अब आप पेल्विक के बाद वापस एब्डोमेन में नहीं जा सकते फ्लूइड ढूंढने के लिए। ठीक है ना, तो इट्स बेटर कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में ही शिफ्टिंग डलनेस देख लो। आप उसी तरह उसका परकशन करते हुए जाते हो अम्बलाइकस तक और फिर फ्लैंक्स तक। अगर वहां पर जाकर डल नोट नहीं आता, यू डोंट नीड टू आस्क पेशेंट टू मूव टू हर लैटरल साइड, क्योंकि फ्लूइड है ही नहीं। अगर डल डल नोट नहीं आया तो इसका मतलब है कि फ्लूइड नहीं है। अगर डल नोट आएगा तो फ्लूइड होगा ना, फिर आप पेशेंट को कहते हो कि लेफ्ट दूसरा करवट ले ले, ताकि फिर आप उसकी शिफ्टिंग डलनेस देखते हो। लेकिन अगर डल नोट ही नहीं आया, इसका मतलब है देयर आर नो साइंस ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमेन।
तो आपने ये एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में कर लेना। फिर आपने पेल्विक एग्जामिनेशन किया, देन यू फाउंड मास पेल्विक एग्जामिनेशन वाज बेटर, वो आपने ठीक बताया, बट अगेन टाइम से ऊपर हो चुका था। लेकिन इनफैक्ट द थिंग इज कि इन्फॉर्मेशन इज फाइन, सिर्फ आपकी स्पीच को फ्लुएंट होने की जरूरत है। और उसका एक ही तरीका है, वो है कि मोबाइल पे अपनी अपनी आवाज रिकॉर्ड करो, 4-5 दफा सुनोगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसी को इम्प्रूव करो, उसी को इम्प्रूव करो, और फिर इंशाल्लाह आपकी स्पीड भी बेहतर हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद उस उतने ही 8 मिनट में आपने समराइज भी करना होता है पेशेंट को, ठीक है ना, फिर आगे बात होती है। ठीक है, चलें आगे। अब सबीना आप इन्वेस्टिगेशंस मांगो। मैम इसकी मैम एक बात और मुझे बता दें, जी, जैसे ये आप कह रही हैं कि कोहिबिटिस की हिस्ट्री, जो कपल की कोहिबिटिस की हिस्ट्री होगी, वो हम पहले बताएंगे मैडम, सबसे पहले एट द बिगनिंग ऑफ HOPI? अगर देखो ना, सब फर्टिलिटी का पेशेंट है, और अगर कोई ऐसी हिस्ट्री से रिलेटेड आपको सिग्निफिकेंटली मिली है, ये देखो आपका केस है सब फर्टिलिटी विद पेन लोअर एब्डोमेन, तो आपने सब फर्टिलिटी में जो जो पॉजिटिव बातें हैं वो पहले करनी है, नेगेटिव बातें सारी एंड पे आएंगी। जब आपने शुरू में बता दी कि उसकी जो भी फर्टिल फ्रीक्वेंसी और वो सारा, उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशंस की बात की, उसमें आपको जो फिर पेन एक बड़ी सिग्निफिकेंट आपको हिस्ट्री मिली है इस पेशेंट के अंदर, पेन को इलेबोरेट करो, उससे रिलेटेड हर चीज, ना कि आप पहले थायराइड और प्रोलैक्टिन की बातें करो। तो सीक्वेंस ऑफ ऑल द इवेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ठीक है मैम। मैम ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस में हाँ। मैडम इन्वेस्टिगेशंस में बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस, मैडम ये सारी इसकी ठीक थी, जिसमें जो है ना नहीं वो, नहीं, आप मांगो, आपको चाहिए क्या, हम केस कर रहे हैं पूरा। okay, madam, I will need a blood group with RH factor बी and पॉजिटिव। complete blood count with date, in which I will need hemoglobin, total leukocyte count, and platelet count. Hemoglobin is 10.8. Platelets are TLC normal. Okay. And madam, hepatitis B surface antigen and anti-HCV antibodies. Negative, negative. And madam, urine detail report, in which I will need red blood cells, pus cells, bacteria, glucose, and proteins. ये 8 to 10% है. Okay, madam. And then, if any culture report of the urine available. Not available. Okay, madam. And madam, then I will need her random blood glucose levels. 92. Okay, madam. And madam, I will need pap smear, semen analysis report of her husband, if available, for pH, semen volume, sperm concentration. चलो वो नॉर्मल है. And madam, if pap smear report of the patient, if available or not. चलो वो भी नॉर्मल है, वो भी दिखा दी. And madam, I will need the previous surgical notes. ठीक है, गुड. चलो we'll talk about it. Okay, madam, and I will also need, madam, tumor markers, in which I will need CA125, alpha fetoprotein, beta HCG, and LDH. We'll talk about it. And madam, ultrasound report for the size of the uterus, endometrial thickness, endomyometrial junction, myometrial leucotexture, and fluid in pouch of Douglas, any adnexal pathology. ठीक है, और we'll again talk about it. हाँ. Madam, that is it for investigations. अच्छा, कोई और कोई बात करे. मैडम Excuse me, अस्सलाम वालेकुम sorry. मैडम। वालेकुम मैडम वालेकुम. हाँ जी. अस्सलाम वालेकुम मैडम, इसमें इनफर्टिलिटी की इन्वेस्टिगेशंस तो मिस है, वो नहीं मांगी सारी। हम्म. सब फर्टिलिटी की जो पेशेंट है हमारे पास सेकेंडरी सब फर्टिलिटी के साथ है, ठीक है, उसकी क्या क्या. इन्वेस्टिगेशन मैम, वी शुड गो फॉर सीरम प्रोजेस्टेरोन एंड एनी रिपोर्ट ऑफ हिस्टेरोस्पेंजियोग्राम इफ अवेलेबल, ठीक है. एंड टेस्ट फॉर मैम ओवुलेशन। हम्म. मैम ये वाली मिसिंग है, ये वाली इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, ठीक है. और कोई. मैम कोविड पीसीआर भी मांगना चाहिए, पेंडेमिक है, वो वाली मिस है। ठीक है. और मैम एफएसएच एंड एलएच प्रोडक्टिन लेवल भी मैं थायराइड फंक्शन टेस्ट भी मांगी है। ठीक है, बिल्कुल. और थायराइड फंक्शन टेस्ट मैम, एएमएच, एंजियोग्राम।
ठीक है, एएमएच पे बात करते हैं, मांगना है कि नहीं? और गुड, ठीक है। Menstrual follicle count, मैम? हाँ वही ना, ठीक है। अच्छा, बात ये है कि वही बात है कि सब फर्टिलिटी का पेशेंट है, तो साथ में ये सारा कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है। हस्बैंड सीमेन एनालिसिस तो आपने मांग दिया, लेकिन बाकी सारी चीजें, और एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो कर दिया सबीन आपने, बात ये है कि अब मसला ये है कि आपको आता सारा कुछ है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो सारी ठीक है, बट यू नीड टू डू मोर प्रैक्टिस। आपको एक तो प्रेजेंटेशन ज्यादा की जरूरत है, दूसरी चीज ये कि वही बात है कि बार बार अपनी ही आवाज, बिकॉज आप अपने आप को सबसे ज्यादा खुद पहले तो क्रिटिक करके करेक्ट कर सकते हो। अभी आई थिंक अभी किसी ने चैट के ऊपर ही डेट शेयर की है, 1 जून, विच मीन्स के टाइम है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन आपको पता है, थ्योरी आपकी बातों से मुझे समझ आ गई, आपको आती है, आपको सिर्फ कन्वे करने का मसला है। और आप एक डायग्नोसिस पे अड़ जाते हो, एक डायग्नोसिस पे नहीं आप अड़ सकते, ठीक है ना? आपने उस पेशेंट की अगेन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को लेके चलना है और अपना डीडी बनाना है पूरा, ठीक है? तो अब आपने जब इसके अंदर मांगा है हस्बैंड सीमन एनालिसिस के बाद, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, या तो पैप्समेयर आप अपनी बेसलाइन के अंदर ही एक ऐड अप कर लो। अगेन सीक्वेंस ऑफ थिंग्स, द वे यू आर आस्किंग थिंग्स जो है ना, दैट मेक्स द डिफरेंस। अब बात वो यही है कि सारे जितने भी कैंडिडेट्स उधर जा रहे हैं वो सब के सब थ्योरेटिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं, सबको पता होता है, एग्जामिनर से भी शायद ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, एक्सेप्ट वेरी फ्यू एग्जामिनर्स, लेकिन ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो सब एग्जामिनर से ज्यादा ही स्मार्ट होते हैं थ्योरेटिकली। बट वाइवा इज नॉट अबाउट थ्योरी, वाइवा इज मोर अबाउट द वे यू प्रेजेंट एंड द वे आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, आपने मांगना किस तरह। डिफरेंस वहीं पैदा होता है उन कैंडिडेट्स में कि एक कैंडिडेट वो भी वही इन्वेस्टिगेशंस मांग रहा है, दूसरा कैंडिडेट भी वही इन्वेस्टिगेशंस मांग रहा है। अब किस कौन सी इन्वेस्टिगेशन आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, या तो फिर आपने जब हस्बैंड सीमन एनालिसिस मांगा तो अपने सारे के सारे सब फर्टिलिटी के इन्वेस्टिगेशंस वहीं पूरी कर लो, कि हस्बैंड सीमन एनालिसिस एंड हर सेरोसल्पिंगोग्राम और एनी लेप्रोस्कोपी और एनी ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट एवर डन, तो उसकी रिपोर्ट स्पेशली आफ्टर लेप्रोटमी। उसके बाद आपने बेहतर है पैप्समेयर को अपनी बेसलाइन के साथ ही एड अप कर दो ताकि मिस ना हो, क्योंकि इसके अंदर पैप्समेयर एक बेसलाइन वाला है, इसलिए कौन सा ब्लीडिंग के साथ आई है कि हम उसको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में ले आए। Then before your tumor markers, why are you asking for the tumor markers? It's better to go for the TVS first. आप कहो कि मेरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दे दें, and then my further investigations will depend on my TVS report. But if you say that I was so sure on my pelvic examination that this is an adnexal mass, even then it's better to get the TVS done before you go ahead with the tumor markers report. उसकी वजह ये है कि जो ट्यूमर मार्कर्स है वो बहुत एक्सपेंसिव और बड़ी लंबी चौड़ी उसकी लिस्ट है। आप अगेन यू नो द थ्योरी, आपने इतनी जबरदस्त फ्लुएंसी के साथ ट्यूमर मार्कर्स मांगे कि लोग तो उसको सोच सोच के मांग रहे होते हैं। बट अगेन वो मांगे क्यों? क्या पता मैं आपको टीवीएस के ऊपर सबसिरोजल फाइब्रोइड दे दूं, क्या पता मैं आपको नॉन गायनेकोलॉजिकल मैस दे दूं उसके ऊपर। तो आपने एकदम से वो नहीं मांग लेना, आपने जो है ना अपना पहले टीवीएस की रिपोर्ट, एंड देन अगेन ये जो सारी बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन हमने मिलके पूरी की अबाउट द थायराइड फंक्शन टेस्ट, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, day 21 serum progesterone in a 28 day cycle, you always ask it that way। हाल अफरीन ने बताया था सीरम प्रोजेस्टेरोन, नो सिर्फ इस तरह नहीं, आपने कह रहे डे 21 सीरम प्रोजेस्टेरोन इन ना 28 डे साइकिल। और फिर यस कोविड पीसीआर, एएमएच, देखो अननेसेसरी चीजें नहीं मांगी। एएमएच अगेन इज एन एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन, और वो लैब्स में तब फ्रीक्वेंटली होता भी नहीं है, इसलिए वो 2-3 दिन बाद रिपोर्ट देते हैं जब उनके पास कुछ सैंपल्स इकट्ठे हो जाए, देन दे डू द एएमएच ऑफ दोस। एंड एएमएच क्यों कराना है? 31 ईयर्स ऑफ एज है, एक लेप्रोटमी ठीक है हुई भी है, उसकी कौन सी कोई ओवरेक्टमी हुई भी है, या मतलब अपनी चीज अपने लिए खुद चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना। इस पेशेंट में एएमएच इसके इन्वेस्टिगेशंस में नहीं आएगा, तो इसके अंदर ये सारी इन्वेस्टिगेशंस इसी तरीके से मांगनी है। फिर एक अच्छी बात ये कि ठीक है सर्जिकल नोट्स आपने मांगे विच वर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने देखना है कि एक ट्यूब तो निकाल दी तो दूसरी ट्यूब का क्या हाल है, ठीक है? तो ये सारा कुछ, और बताएं और कोई चीज इसमें ऐड आई मैम थिंक। मैम वो एएमएच के लिए जैसे कि इन्होंने उनको बायोमैनुअल एग्जामिनेशन पे 8 सेंटीमीटर की सिस्ट निकली, अभी इतनी सिम्टोमेटिक है, हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो पेशेंट इनफर्टिलिटी की है, तो हमें एटलीस्ट एएमएच से उसका रिजल्ट्स पता चलेंगे नहीं, एग्स के, एंड देन फॉलोड बाय अभी नहीं, ओवेरेक्टमी, ये नहीं हो ये सकता? थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, बात आपकी इतनी गलत नहीं है, लेकिन प्री ऑपरेटिवली एएमएच इन अ पेशेंट हु नेवर हैड ओवेरियन सर्जरी बिफोर, उसका कोई पॉइंट नहीं बनता। हाँ पोस्ट ऑपरेटिवली थोड़ा जस्टिफाइड है,
लेकिन प्री ऑपरेटिवली पहले ही एमएच करा ले ना 31-year-old लेडी, अगर वो 35 प्लस होती तो फिर भी चलो एक बात बन जाती थी कि हम एमएच करा रहे हैं टू सी द वेरिएंट रिजर्व इवन गोइंग अहेड विद सर्जरी। लेकिन अभी तो 8 सेंटीमीटर की सिस्ट है, जो भी आपने करना है, लेकिन प्री ऑपरेटिवली या तो आपको स्टडी कर रहे हो फॉर द स्टडी पर्पस, कोई रिसर्च कर रहे हो कि प्री ऑपरेटिवली क्या एमएच है, पोस्ट ऑपरेटिवली वो और बात है, लेकिन अभी प्री ऑपरेटिवली पहले से कुछ कराने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ कि इस पेशेंट के अंदर विल यू गो फॉर द टीबी टेस्ट? मैडम कोई कमेंट करे इस बात पे? Yes, madam, it's important यस to see the reaction. यस यस सीआरपी यस, बट आई थिंक इवन आप टी स्पॉट टेस्ट करा लो या फिर मोंटोस टेस्ट, अपने डीडी में टीबी भी रखो। ऑब्वियसली आप कहोगे मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल डिपेंड ऑन माय टीबीएस रिपोर्ट, तो जहां आपने ट्यूमर मार्कर्स मांगे हैं वहीं पे आप एक आधा टीबी का टेस्ट भी मांग लोगे, क्योंकि मैडम अगर आप मोन्टॉक्स टेस्ट तो इसका वैसे ही पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसको टीबी हो चुकी है ऑलरेडी, तो मोन्टॉक्स टेस्ट तो इसका सॉरी पॉजिटिव। मोंटोस कह रही हूँ, जो इम्यूनो एसे टेस्ट होता है आईजीआरए टेस्ट विच इज मोर सेंसिटिव, आप वो मैडम वाला टेस्ट बोल दो। वो भी नहीं एक्टिव टीबी इंडिकेट नहीं कर रहा होता, वो भी एक्टिव टीबी नहीं बता रहा होता। नहीं, लेकिन आपको अंदाजा तो हो जाता है एक्टिव उसके पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। आप अगेन यस आपके इंट्राऑपरेटिव फाइंडिंग्स बहुत ज्यादा दफा, बिकॉज ट्यूबरकुलोसिस में इट्स मेनली कई दफा इंट्राऑपरेटिव फाइंडिंग्स, बट जो आईजीआरए टेस्ट है वो आपको एक्टिव टीबी का दे देता है, और अगेन यस Yes, madam, टीएलसी से पता चल active जाता है, and latent. ईएसआर या सीआरपी से, तो लेकिन आईजीआरए टेस्ट इज क्वाइट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है फॉर पिकिंग द मैडम ट्यूबरकुलोसिस। टीएलसी जैसे आपने मुझे दिया तो वो नॉर्मल दिया था ना, तो दैट्स व्हाई आई इंटेंशनली नहीं डिड नॉट and टेस्ट then इट। no, because there is a history of tuberculosis और TVS के अंदर obviously आप कहोगे कि my further investigations will depend on TVS report, but जब TVS के अंदर complexes दे दिए and you are going for tumor markers, then definitely you have to TLC normal आपका 100% diagnostic नहीं है कि वो TB नहीं है, even IGRA टेस्ट की sensitivity 97% है, but 97% is very good। जो मोंटोस या टी स्पॉट टेस्ट है जैसे आपने कहा यस उसकी सेंसिटिविटी कम है, लेस देन 50%, बट लेकिन आपकी इन्वेस्टिगेशन से ये तो पता लग रहा है ना कि इट इज कि आप एक डीडी में आपने टीबी भी रखे एंड यू नेवर नो इंट्राऑपरेटिवली इस तरह के पेशेंट में टीबी भी निकले, ठीक है ना, तो यू मैडम नेवर नो। स्पेसिफिकली टीबी के लिए क्या मांग लेते? आप आईजीआरए और AIGRA मांग लो, आपने बताना कि आपके डीडी में अक्सर टीबी अपना भी माइक शामिल है, बंद कर दें। ठीक है कि मैम। आपके और मैम डीडी में वो भी शामिल है, ठहरो मैं माइक बंद कर दूं। आपके डीडी के अंदर टीबी भी शामिल है, आपको एक वो आपके इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाता है, या तो टी स्पॉट मांग लो या आईजीआरए, इट्स बेटर टू गो फॉर अ बेटर टेस्ट जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, तो यू आस्क फॉर आईजीआरए टेस्ट। ओके मैम, और थायराइड मैडम मैंने इसलिए नहीं मांगा था क्योंकि हम्म डॉक्टर शनाज के साथ भी एक केस डिस्कस हुआ था प्राइमरी इनफर्टिलिटी विद हाँ एंडोमेट्रियोसिस, तो मैडम ने यही कहा था कि इतनी जब स्पेसिफिक आपकी हिस्ट्री इंडिकेट कर रही है कि इसमें एंडोमेट्रियोसिस ही है, इतना खास पता शी इज चल रहा है। राइट एक्चुअली, यस शी इज राइट, बट गाइडलाइंस है, सब फर्टिलिटी की जो नाइस गाइडलाइन है ना उसमें वो कहते हैं कि आप थायराइड फंक्शन टेस्ट भी करा लो। ओके मैडम, एफएसएच तो नहीं कराएंगे ना? या बेसिकली द थिंग इज के बेशक पीरियड्स रेगुलर भी हैं, लेकिन एक बेसलाइन हार्मोनल प्रोफाइल इवन इन 90% ऑफ पेशेंट्स who are having regular periods they are ovulating, but then there is 10% exception भी तो है ना, so it's better to get FSH prolactin done in a patient who is presenting with the with subfertility एंड टू रिकन्फर्म अगर आप या तो फॉलिकल से रिकन्फर्म कर लेते हो या डे 21 सीरम प्रोजेस्टेरोन 28 साइकिल से कंफर्म कर लेते हो, और जो आपका सबफर्टिलिटी वाला है उसके अंदर बेसलाइन एक दफा ये करा लेने में कोई हर्ज नहीं है, तो बिकॉज मैडम व्हाट डॉक्टर रूबा एडिशनल इसकी इंफॉर्मेशन जस्टिफिकेशन हम क्या टेस्ट? देंगे? एफएसएचएलएच और सीरम प्रोलैक्टिन की एग्जामिन तो हमसे पूछेगा आपके साइकिल रेगुलर है, सो आई गोइंग फॉर दिस। 100% patients who are having regular periods may not be ovulating, परसेंटेज 100% नहीं है, तो मैडम एफएसएच तो ओव्यूलेशन को इंडिकेट कर भी नहीं रहा ना। लेकिन एक बेसलाइन आपका हार्मोनल जो है प्रोफाइल से बिल्कुल पता चल रहा है, एंड देन प्रोलैक्टिन यस पीरियड्स रेगुलर है, लेकिन एट टाइम्स यू डू गेट हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स इवन विद द रेगुलर पीरियड्स। तो डॉक्टर रूबा वो तो हम डे 21 सीरम प्रोजेस्टेरोन करवा तो रहे हैं ओवुलेशन के लिए, तो वो ठीक नहीं है, डे वो इनफ नहीं है? 21 तो ठीक है, लेकिन वो एक साइकिल से तो आपको पता चल रहा है, बट यू नो एफएसएच एलएच रेशो जो है कई दफा पीसीओ के अंदर ज्यादा हो सकती है, सो एक बेसलाइन हार्मोनल प्रोफाइल हर एक में इट इज इंडिकेटेड।
especially in a patient with subfertility. और मैडम प्रोलैक्टिन का तो स्पेसिफिकली गाइडलाइन में भी लिखा हुआ है कि until and unless पेशेंट सिम्टोमेटिक ना हो तब तक आप ना थायराइड कराओ ना प्रोलैक्टिन कराओ। किसकी गाइडलाइन में लिखा हुआ है? मैडम ये जो नाइस की गाइडलाइन है इनफर्टिलिटी की। नहीं, इनफर्टिलिटी में लिखा हुआ है जो थायराइड फंक्शन टेस्ट है वो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में बेसलाइन एसिम्प्टोमेटिक थायराइड भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो थायराइड फंक्शन टेस्ट तो आप करा लेते हो। मैडम वो तो चाहिए, चले थायराइड का मैंने करवा लिया। मैडम डॉक्टर शहनाज ने तो मना करवाया था, तो मैंने स्पेसिफिकली इसलिए मैं देखो मांगती बोथ थी थिंग्स मैडम, आर फिर नहीं करेक्ट, मांगा आप मैंने। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन दोनों चीजें ठीक है, लेकिन एक चीज है कि आप अगर आप नहीं भी मांगोगे तो ये बड़ी ही अच्छी जस्टिफिकेशन है कि यू नो द कॉज फॉर सबफर्टिलिटी इन दिस पेशेंट। आपको हिस्ट्री से एक बड़ी सॉलिड किस्म की कॉज मिल गई है, इस वजह से नहीं करा रहे, इट्स अ वेरी गुड जस्टिफिकेशन। बट अगर आप मांग लोगे तो उसकी ये जस्टिफिकेशन है, एक गाइडलाइन के अंदर भी है, एंड देन सब क्लिनिकल थायराइड हो सकता है इन अ पेशेंट विद सबफर्टिलिटी, तो बोथ जस्टिफिकेशंस आर फाइन। और अगेन ये थायराइड फंक्शन टेस्ट मांगना ना मांगना कोई पास फेल वाली इन्वेस्टिगेशन नहीं है। हाँ, ट्यूमर मार्कर्स टीवीएस की रिपोर्ट से पहले मांगना पास फेल वाली इन्वेस्टिगेशन है। कुछ इन्वेस्टिगेशन होती है जो आप मांग लेते हो एंड देन यू कैन ऑलवेज जस्टिफाई, यू कैन टॉक अबाउट इट, और वो बड़ी अच्छी जस्टिफिकेशन अगर आप दे रहे हो तो बड़ा अच्छा आप सेटिस्फाई कर सकते हो एग्जामिनर्स को। मैडम ने बिल्कुल ठीक है डॉक्टर नाज ने कि इफ यू आर गेटिंग गुड कॉज मिल गई है आपको फर्टिलिटी की, तो इट्स वेरी गुड जस्टिफिकेशन है। गरीब पेशेंट वाकई जब आता है और वो नहीं अफोर्ड कर सकती तो वी हैव टू बी वेरी वेरी लिमिटेड एट टाइम्स, फिर हम वाकई कहते हैं कि इसको इतने लंबा चौड़ा कामों में हम क्या चल लगाए। इवन कई दफा पेशेंट की पीसीओ की इतनी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री होती है, हम नहीं कराते, फिर से चले जाए जब हिस्ट्री इतनी सिग्निफिकेंट है। सो यस, यू कैन जस्टिफाई, बट इसके अंदर भी आप कर सकते हो। थायराइड फंक्शन टेस्ट मांगना ना मांगना वाज नॉट पास फेल वाला मसला। हाँ, however not asking tuberculosis को मिस आउट करना was a big mistake. ट्यूमर मार्कर्स पहले मांगना was a big mistake. सबफर्टिलिटी की कुछ बाकी इन्वेस्टिगेशन ना मांगना was a big, so ये चीजें and then डॉक्टर again एक बात sequence of। पूछनी थी आपसे, सॉरी इंटरप्ट कर हाँ रही जी हूँ। हमा। ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम एंडोमेट्रियल सैंपलिंग फॉर एफबी इस नो, पेशेंट करवाने जरूरत तो नहीं नहीं, है? नॉट एट ऑल। ओके, थैंक यू। अब इसके लिए पूरा एक प्रोसीजर क्यों करेंगे, उसकी तो कोई सिग्निफिकेंस है, स्पेशली उसके तो पीरियड्स भी ठीक है, उसको कौन सा ओलिगोमेनोरिया या बिल्कुल ही मिस करिए अपने पीरियड्स, ठीक है ना, तो वो और नहीं मैडम करेंगे। सर्जिकल नोट्स मैंने जो मांगे थे पेशेंट के हम्म, उस पे जो है वो ट्यूबल पेटेंसी मैंने असेस करना चाह रही होती थी, पर मैंने बोला पर नहीं, उसको मुझे नहीं बोलना बोला, नहीं था मैडम। अच्छा किया नहीं बोला, उसकी वजह ये है कि एक टॉपिक के साथ ट्यूबल पेटेंसी तो नहीं देखी जाती ना। हाँ जब बिल्कुल। जब एक टॉपिक की सेल्फ इंजेक्टमी होती है तब एक लुक ऑफ द ट्यूब भी देखी जाती है कि दूसरी ट्यूब देखने में कैसी है, उसके अलावा या उसके ओवरऑल एडिशंस कैसी थी, और पेटेंसी तो मैडम उस टाइम पे नहीं चेक होती। I have to, because this is a case of endometriosis, I have to proceed for laparoscopy, so I will do Lapidem at that time, वो तो इसलिए तो मैनेजमेंट में करेंगे, जो है, चलो अब हाँ। मैनेजमेंट करते हैं। चलो ठीक है, बिल्कुल मैनेजमेंट बताओ, पहले डीडी तो बताओ सभी। Madam, differential diagnosis, my provisional diagnosis is endometriosis because patient is complaining of dysmenorrhea and dyspareunia, and my patient is having during menstruation, and also my patient is having palpable mass through the right fornix, which is tender to touch, and my second differential diagnosis is tubo-ovarian mass or tuberculous mass, as my patient is giving history of pulmonary TB. This might have disseminated into a pelvic TB, causing the tuberculous mass. And my third differential diagnosis is benign ovarian cyst, and my fourth differential diagnosis is malignant ovarian cyst. इसमें नॉन गायनेकोलॉजिकल भी कॉस्ट डाल दो आखिरी। Uh, अब okay, अगेन madam. देखो, आपने बात वही करूंगी आपकी, यू नो द थ्योरी, आपको कुछ बहुत ज्यादा थ्योरी अच्छी आती है, यू रियली वांट टू कन्वे वो सारी चीज, ओके अच्छी बात है, लेकिन इसको जरूर कन्वे करो, लेकिन फोकस्ड रह के। यू सेड एंडोमेट्रियोसिस पहले नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे बिनाइन ओवेरियन सिस्ट। क्या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या एंडोमेट्रियोमा बिनाइन ओवेरियन सिस्ट नहीं है? मतलब इस तरीके से नहीं। आपने ठीक है नंबर वन एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या एंडोमेट्रियोसिस, उसमें जब आपने कॉज बिकॉज करके जब व्हेन यू टॉक के क्यों है, तो यू सेड बिकॉज माय पेशेंट इज हैविंग डिस्मेनोरिया। इसमें सबसे पहले सब फर्टिलिटी भी ऐड कर दो ताकि आपका डायग्नोसिस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, फिर तो कोई शक ही नहीं रह जाता। देखो, मरीज इज हियर विद सबफर्टिलिटी एंड इज हैविंग डिस्मेनोरिया डिस्पैरोनिया, और आप मतलब एग्जामिनर को एक तरह से आप बड़े कॉन्फिडेंटली बता रहे हो, जैसे डॉक्टर राशिद कहते होते हैं कि आंखों में आंखें डाल के बता रहे हो कि और क्या कॉज रह गई इन तीन बातों के बाद, ठीक है ना, सब फर्टिलिटी डिस्मेनोरिया डिस्पैरोनिया के बाद और क्या डीडी रह गया, तो अपनी बात को सही तरह करनी। दूसरे टीओमैस
अच्छा, आपका नंबर 1 डीडी जो बोला आपने एंडोमेट्रियोसिस बोला, नंबर 2 बोला टियोमास, नंबर 3 बोला ट्यूबरकुलोसिस, मैडम नंबर 4 बोला बिनाइन ओवेरियन, नंबर 5 बोला मेलिग्नेंट, नंबर 6 नॉन गायनेकोलॉजिकल। इसमें से टियोमास, टीबी, बिनाइन, ये टोटल आपने बात 2 की है, लेकिन टाइम बड़ा ज्यादा ले लिया। आपको एंडोमेट्रियोसिस बोल दिया, नंबर 2 पे ट्यूबरकुलोसिस, पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस बोलो, फिर नंबर 3 पे बोलो कि एनी अदर बिनाइन और मेलिग्नेंट ओवेरियन मास। ठीक है, अपनी बात को बड़ा शॉर्ट और फोकस इस तरह से देखो। एग्जाम में 2 या 3 डीडी बस बोलना है, 3 मैक्सिमम डीडी बोलना है। चौथा तो जाहिर है नॉन गायनेकोलॉजिकल, तो इतना काउंटेबल नहीं है, तो आपने नॉन गायनेकोलॉजिकल तो बोलना ही है, क्योंकि मेसेंटेरिक भी तो हो सकती है, कोई पेंडिकुलर कुछ भी और हो सकता है। तो लेकिन अपना एक तो आपने बड़ा अच्छा बोल दिया एंडोमेट्रियोसिस, साथ ही आपने 3 बस बहुत फोकस्ड आंसर करना है, लंबी चौड़ी नहीं बात करनी। एंडोमेट्रियोसिस बिकॉज शी इज हैविंग सबफर्टिलिटी विद डिस्मेनोरिया एंड डिस्पर्मिया, आपका वही केस पास है। मतलब एग्जामिनर को समझ आ गया कि आप मरीज के पास गए नहीं हो और आपको उसका मसला पता है। यू डोंट नाउ नीड टीवीएस और यू डोंट नाउ नीड एनीथिंग एल्स, यू आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रैक्टिकल अप्रोच कि आपको एग्जैक्टली पता है। तो एंडोमेट्रियोसिस। नंबर 2 tuberculosis because she's having pelvic tuberculosis, so pelvic tuberculosis, she's having pulmonary history of pulmonary associated pelvic tuberculosis. नंबर 3 B9 ओवेरी। नंबर 3 इस तरह से बोल दिया कि बहुत कुछ कवर भी हो गया, लेकिन आप इन अदर वर्ड्स एग्जामिनर को बता रहे हो कि आई डोंट रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, इट्स नॉट B9 or malignant ovarian mass, it is endometriosis. However, my DD is also that because I need TBS report, ताकि उसके बाद मैं अपने ट्यूमर मार्कर्स मांगू और अपनी इन्वेस्टिगेशन को जस्टिफाई करूँ। डॉक्टर और रूबा फिर काइंडली एक सॉरी इंटरप्ट कर रही है, क्वेश्चन जी, पूछने हैं। बिनाइन ओवेरियन एंडोमेट्रोमा भी तो बिनाइन ओवेरियन मास में आ जाता है ना? एनी अदर, मैंने नंबर 3 में बोला एनी अदर, इसीलिए तो बोला ओके एनी अदर। ओके, ठीक ठीक है है ना? ठीक। और फिर नंबर 4 पे कह दो कि नॉन गायनेकोलॉजिकल। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसका डीडी बनाना है। चलो अब मैनेजमेंट बताओ। Madam, prior to starting my management, I will like to know गुड, the missing ये investigations. बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये जो अभी सभी ने बात की। प्लीज प्लीज एग्जाम में आज हमारे पास वैसे कैंडिडेट्स का नंबर भी अच्छा है, सो आई रियली वांट टू कन्वे दिस थिंग कि जब आप एग्जाम के अंदर अपना हिस्ट्री एग्जामिनेशन का आपको पेपर मिला होता है और उसके अंदर आप इंपॉर्टेंट बातें लिख रहे होते हैं, और स्पेशली इन्वेस्टिगेशन, एक राइट हैंड कॉर्नर रखो, चाहे उसके ऊपर रेड पेन यूज करो या जो भी यूज करो, हाईलाइटेड चीजें, रिस्क फैक्टर्स। जैसे मैनेजमेंट पे डायरेक्टली सभी शुरू हो गई कि आई विल काउंसल माय पेशेंट अबाउट, नो, वो बात पहले अपनी वो तो इन्वेस्टिगेशंस पूरी करो ना जो नहीं दी अभी एग्जामिनर ने। तो आपने डायरेक्ट ठक करके मैनेजमेंट नहीं शुरू कर देनी कि आई वुड लाइक टू हैव दिस, आई विल काउंसल माय पेशेंट लाइक दिस। आप पहले बोलोगे कि आई वुड लाइक टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशंस बिफोर आई गो अहेड, क्योंकि हाउ कैन यू काउंसल अ पेशेंट इफ यू डोंट नो द डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस आपको पता चलेगा बहुत सारी रिपोर्टों के बाद, जो कि मैंने अभी तक सबीन को दी नहीं थी। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका जो सेकंड एग्जामिनर बैठा होगा सेकंड हाफ ऑफ द वाइवा के लिए, उसका पहला लफ्ज ये होगा कि हाउ विल यू मैनेज योर पेशेंट। और उसमें कई एग्जामिनर 90% जो कैंडिडेट्स हैं वो गलती से शुरू कर देते हैं इस बात से कि आई विल काउंसल माय पेशेंट फॉर दिस, बट नो, बिफोर दिस प्लीज अपने उस पेपर की तरफ देखना, और जो जो इन्वेस्टिगेशन नहीं मिली वो पहले उनसे मांग लेना। ठीक है ना? और अपने रिस्क फैक्टर्स पे एक नजर डाल देना पेशेंट को काउंसल करने से पहले। चलो जी सभी मैनेज करें। Madam, missing investigations में urine culture report and transvaginal scan report ठीक है, and ट्रांसवेजाइनल की स्कैन रिपोर्ट आप हमें बता दो जो पेशेंट की असल में थी। मैडम ट्रांसवाजिनल स्कैन पे जो है वो उसका वो आ रहा था 7 into 8 सेंटीमीटर का, 8 into 10 सेंटीमीटर का जो है वो उसका लेजन था विद हम्म, ऑन राइट साइड ऑफ ओवरी था मैडम। ठीक है। उसके करेक्टरिस्टिक्स उन्होंने इतने ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं किए हुए थे, मोस्ट क्या प्रोबेबली थे फिर उन्होंने भी? यही कहा। कॉम्प्लेक्स थी जी या जी सिंपल थी? इतना तो बता ही देते हैं कि विद सेप्टी है या सिंपल ओवेरियन सिस्ट है। मैडम उसमें उन्होंने कॉम्प्लेक्स कहे थे, कॉम्प्लेक्स ठीक है, ठीक है, इकोस बस ठीक है, यही हमारी स्कैन की रिपोर्ट है। multicystic cystic mass हम्म, of 9 into 3 centimeter, 9.3 into 4.5 centimeter. फाइन, गुड, ठीक है। बिल्कुल यही फाइंडिंग मैंने आपको बता दी जो इस वक्त अल्ट्रासाउंड की बताई है सबीन ने, कि 9.3 into 4 centimeters multicystic lesion in the right ovary, बाकी एंडोमेट्रियम और वो सब कुछ
और बड़ा ही अच्छा से बीने अल्ट्रासाउंड बड़ा अच्छा मांगा था, जो पेल्विक अल्ट्रासाउंड मांगा था, सच जो अच्छी बात है वो भी तो बताओ ना। तो अल्ट्रासाउंड बड़ा अच्छा मांगा था, उसी तरह वो सारा आपने बोलना है। ठीक है ठीक है ठीक है सबीन, यही रिपोर्ट है, मैंने आपको दे दी। मैडम अब ये आपने मुझे सिस्ट दे दी है, तो मैं इसमें मैडम ये क्वेरी है मुझे कि मैं ये सिस्ट में इसमें पूछूं कि आइदर इट इज यूनिलैटरल और बायलैटरल सॉलिड और यस यस, यहीं पे रुक जाओ। आप एग्जामिनर से कहो कि आई वुड लाइक टू गेट हर अल्ट्रासाउंड रिपीटेड because the ultrasound is not complete. I want to know exactly the features of the cyst. It's unilateral, bilateral, इसका साइज क्या है, इसका सॉलिड सिस्टिक। इसके सेप्टी कितने हैं, सेप्टी का थिकनेस कितना है, इसका ब्लड फ्लो क्या है, वो सारा कुछ आप बोलो। जो हम सिस्ट की एग्जामिनर ने सिस्ट बोली है अल्ट्रासाउंड पे तो वहीं रोक लो, कहो आई वुड लाइक टू नो दिस। अगर नहीं दिया वो कहोगे कि आई वुड लाइक टू रिपीट है अल्ट्रासाउंड फॉर ऑल दीज फीचर्स। ठीक है ना, क्योंकि उस पे ओके आपने कितना कुछ डिसाइड करना है। गुड, मैडम, ठीक मैं है। उसमें यही मांगूंगी कि आइदर इट इज यूनिलैटरल और बायलैटरल, आइदर इट इज सॉलिड और सिस्टिक, मल्टीलोक्यूलर और यूनिलोक्यूलर, व्हाट इज द साइज ऑफ द लार्जेस्ट लोक्यूल एंड एनी ब्लड फ्लो, प्रोमिनेंट ब्लड फ्लो इनटू द सिस्ट। वेरी गुड। डॉक्टर अरूबा, ये एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट में भी तो ब्लड फ्लो प्रेजेंट होता है और ये भी ये तो हम कॉम्प्लेक्स आगे बात होती है। करते हैं, अभी बात हाँ, ये करते हैं, करते हैं ना, अच्छा, ये बात कर बताइए। रहे हैं आगे। चलो यही दे दिया, ठीक है, आगे से भी। तो फिर देन मैडम आई विल नीड द ट्यूमर मार्कर्स ऑफ द पेशेंट आल्सो। ठीक है, गुड। चलो CA 125 200 है, 200। ओके। बाकी नॉर्मल है, जी। बाकी बाकी नॉर्मल है। अब तो ठीक है मैडम, तो देन आई विल काउंसल माय पेशेंट अबाउट द डायग्नोसिस that based upon the history examination and investigation, most probably my most probable diagnosis is endometriosis with एक primary चीज रह गई सारी subfertility। सभी अपने, बाकी तो देखो ना इन्वेस्टिगेशन हुई हैं कि नहीं हुई पूरी। सब फर्टिलिटी की इन्वेस्टिगेशंस आपने को पूरी नहीं हुई, ठीक है ना, वो सारी आपने पहले पूरी करनी है। देन टीबी का आपने नहीं पूछा मेरे से, वो आप वही करोगे। ठीक है, ये सारा कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर यहीं पे हम एक बात और कर लेते हैं कि सीटी मांगना है कि नहीं मांगना है, क्योंकि जैसे अभी हमने कहा है कि ब्लड फ्लो तो उसमें भी होगा, कॉम्प्लेक्स तो वो भी है। सो आर यू गोइंग टू गो फॉर सीटी और नॉट? Madam, ideally it should be done to for the characteristics, for to determine the characteristics of the cyst, but based upon the history examination or ultrasound findings, it would not create any major difference in this case. ये तो अच्छा जवाब नहीं है, और कोई बताए। बात मैडम लॉजिकली आपने ठीक ही इसमें, है, बट यस मैडम, कन्वे नहीं कर सक रहे हो। जी। मैडम इसमें हम इस तरह मांग सकते हैं कि एनी mass who having the M component should be investigated further in the form of tumor markers and CT scan also. अच्छा, और मैडम कोई? चिट्ठी मैडम बढ़ा But दिया for इसमें अभी। example, एमआरआई इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो जो है स्टेजेस ऑफ द एंडोमेट्रोसिस को भी बता देगा। for the तो assessment of deep एमआरआई की endometriosis. कॉस्ट जो है ना आजकल प्राइवेट सेटअप में एक माइनर प्रोसीजर जितनी होगी भी, अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ अर्से पहले ही पता चला है। एमआरआई की कॉस्ट होगी है कोई 25-30 हजार मेरा ख्याल है, और सीटी विद कंट्रास्ट की कॉस्ट होगी 16-17 हजार। दिस इज वेरी स्ट्रेंज थिंग टू नो, मैं तो हैरान रहेगी कॉस्ट सुनकर। अब मैम बताओ आई थिंक कराओगे कि नहीं, So बेचारी भी मजदूर की on बीवी। examination, जी, अल्ट्रासाउंड के ऊपर डॉक्टर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलेगी और सजेस्टिव ऑफ एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, अगर हमें अल्ट्रासाउंड पे पता चल गया। लेकिन अगर नहीं, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, जरूरी नहीं ग्राउंड ग्लास का लफ्ज लिखे अल्ट्रासाउंड वाला बंदा। एंडोमेट्रियोसिस के लिए ग्राउंड ग्लास मिल गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन आई थिंक 10% स्कैन रिपोर्ट्स पे ये बात लिखी होती है, वो तो कॉम्प्लेक्स सिस्ट ही देते हैं। जी मैम डॉक्टर। जब जब अल्ट्रासाउंड इनकन्क्लूसिव हो, वो क्लियर नहीं बता रहा कि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, तो हम उस सूरत में सीटी कराएं। देखो मेरी बात सुनो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सीटी बेइंतहा एक्सपेंसिव हो गया, एमआरआई भी बड़ा एक्सपेंसिव है, ये आपने इन्वेस्टिगेशन सिर्फ तब बतानी है अनलेस दे आर एब्सोल्युटली इंडिकेटेड। बेशक प्राइवेट गवर्नमेंट सेटअप में फ्री हो, लेकिन सोच लो कि फिर गवर्नमेंट के रिसोर्सेज कितने यूज हो रहे हैं, और प्राइवेट की कॉस्ट तो मैंने आपको बता ही दी है। तो ये आपने सिर्फ तब जब बहुत ज्यादा इंडिकेटेड हो। अब इस पेशेंट के अंदर अगर ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल है, आप उसे जस्टिफाई, आप कहोगे हिस्ट्री के अंदर जैसे हमने डीडी में सभी ने बताया कि सब फर्टिलिटी डिस्मेनोरिया डिस्पारोनिया, अल्ट्रासाउंड की ये रिपोर्ट है, ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल है, CA 125 200 indicates peritoneal irritation which is a part of endometriosis actually। कोई मेरा ट्यूमर मार्कर ज्यादा नहीं है, तो देर इज वेरी लेस लाइकली चांस दैट शी इज हैविंग malignant ovarian mass, तो आई डोंट नीड सीटी स्कैन।
सीटी स्कैन हम कराते ही क्यों है? हम स्टेजिंग ऑफ द डिजीज के लिए, ताकि अगर ये मेलिग्नेंट है तो कल को हम सर्जरी करने जा रहे हैं तो हमें पता चल जाए कि इसका सीटी में क्या क्या आएगा। एमआरआई किसी ने कहा एंडोमेट्रियोसिस की हमें स्टेज पता चल जाएगी, एक्सटेंट, हमने क्या करना है स्टेज को, हम इंट्राऑपरेटिवली देख लेंगे। खुदा ना खास्ता ये कोई सीए तो नहीं है कि जिसमें हमने पहले कीमोथेरेपी करनी है। इतनी महंगी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, शायद उसका पूरा ऑपरेशन ही 15-20 हजार में, किसी चैरिटी जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें 15-20 हजार में उसका प्राइवेट साइड पे ही अब पूरा ऑपरेशन हो जाएगा, कि इंस्टेड के वो बेचारी पहले एमआरआई के पीछे भागती फिरे। स्टेजिंग ऑफ द डिजीज एंडोमेट्रियोसिस में आपको इंट्राऑपरेटिवली मिल जाएगी, तो आपने उसका उसमें एमआरआई एंडोमेट्रियोसिस के लिए नहीं कराना। तो सीटी आपने तब कराना है जब आप मेलिग्नेंट के ढूंढ समझ रहे हो उसको। CA 1 to 5 खुदा ना खास्ता मैंने आपको बहुत हाई दे दिया, 1000 से ऊपर हजारों में दे दिया दूसरा, या फिर कोई और ट्यूमर मार्कर बहुत ज्यादा दे दिया, या फिर उसका कई दफा होता है कि पेशेंट इज अ नोन केस ऑफ CA, या फिर ये होता है यानी कि शी इज ऑलरेडी ऑन कीमोथेरेपी, या फिर ये होता है कि एक सिग्निफिकेंट एक पूरी एग्जामिनेशन पे एसाइटीज आपको मिली है और वो सारा कुछ आपको मिला एंड यू आर थिंकिंग मोर टुवर्ड्स CA डिस्पाइट हर ट्यूमर मार्कर्स आर नॉर्मल, डिस्पाइट उसका नॉर्मल है, बट शी इज लुकिंग, शी इज हैविंग बहुत ज्यादा वेट लॉस है, उसकी इतनी ज्यादा हिस्ट्री जा रही है एंड एग्जामिनेशन जा रहे हैं टुवर्ड्स CA कि आप एहतियातन उसका करा भी लो तो चलो आपको। लेकिन अदरवाइज अगर ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल है इस तरह के पेशेंट में, डोंट गो फॉर सच एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन जिसका आपकी सर्जरी के ऊपर कोई इफेक्ट आना नहीं है। हाँ, लेटर ऑन मैं आपको बताती हूँ कि सर्जरी में हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज इवन ट्यूमर मार्कर्स आर नॉट 100% सेंसिटिव फॉर CA। तो उसके लिए आपने आगे क्या करना है, ये हम आगे मैनेजमेंट में भी बात करते हैं, ये बात याद रखना, कहीं कॉर्नर पे लिख लो कि मैंने आपको बताना है कि अगर खुदा ना खास्ता विद ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल आप सीटी भी मिस कर दिया बट इंट्राऑपरेटिवली आप फंस गए और देखने में लुक इज नॉट एंडोमेट्रियोटिक बट इंस्टेड इट्स अ कॉम्प्लेक्स मास, तो फिर आपने क्या करना है। तो लेकिन इस ये तो आपका बड़ा सीधा साधा केस चल रहा है सारा लेके, सो इफ ट्यूमर मार्कर्स आर नॉर्मल देन यू कैन नॉट जस्टिफाई सीटी। एमआरआई तो बिल्कुल अ बिग नो फॉर एंडोमेट्रियोसिस, ट्रीटमेंट में एमआरआई का कोई रोल नहीं है। आगे ठीक है, चलो सबीना अब आगे बताओ। ठीक है मैडम, आगे जो है ना वो पहले तो मैं ये कह देती हूँ कि पेशेंट को डायग्नोसिस बता दूंगी। आई विल काउंसिल दैट शी हैज एंडोमेट्रियोसिस विद प्राइमरी सबफर्टिलिटी एंड यूरिनरी ट्रैक Is इन्फेक्शन। most probably when you're talking about diagnosis, it's most probably endometriosis. However, ultimate diagnosis will be made on histopathology report. Statement हम normally भी यही बोलते हैं पेशेंट को, तो वही बोलनी है स्टेटमेंट। Okay, madam. For her urinary tract infection, I will start her on antibiotics, empirical antibiotics, and further I will counsel my patient about the that endometriosis is a benign condition, but the final diagnosis will depend upon the histopathology report after the surgery. And I will also counsel that her symptoms of pain and self-fertility are most probably due to this condition, but Very good. unfortunately, there is no definitive treatment available for this condition, and it is a recurring condition, and hence we need continuous medical supervision and intermittent treatment for the Good. suppression of एक चीज disease. यही ऐड कर लो क्योंकि बता बहुत ही अच्छा रहे हो, एक्सेलेंट। इसी में इसलिए यही इंटरप्ट करी हूँ, इसमें ऐड कर लो कि इट्स अ बिनाइन कंडीशन नॉट मैलिग्नेंट। हाँ मैम, बोला मैंने कि इट्स अ बेनाइन बोला, कंडीशन। अच्छा सॉरी आई मिस्ड इट, देन फिर तो और भी अच्छी बात है, बहुत अच्छा, यू आर कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स। यही सारे सवाल हैं जो पेशेंट के माइंड में चल रहे होते हैं व्हेन यू आर काउंसलिंग अ पेशेंट, और ये सारे आपने अपनी काउंसलिंग के स्टेटमेंट में कवर करने होते हैं कि ये है क्या, ये इसका बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, इसकी ट्रीटमेंट है तो क्या है, और क्या वो डेफिनेटिव है या ये रिकरिंग, क्या ये दोबारा तो नहीं हो जाएगा। फिर ये कि इसका आपने इसका वही सब फर्टिलिटी से कोरिलेट, सबीना हैज कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स इन वन लाइन। अब यहाँ पे देखो टाइम भी कवर हो गया और सारी बातें कवर होगी, तो इस तरीके से करना है। चलो गुड, आगे। Okay, madam. But then I will tell her about that as she is having an 7 to 8 centimeter endometrioma on the ultrasound scan, and hence there is the need of laparoscopy, which is the gold standard for the diagnosis and treatment, and it will relieve the pain up to 85% in the first 6 months, and will improve Good. the chances of her fertility. And the recurrence rate of the although as there is the chances of recurrence, so the recurrence rate of symptoms of endometriotic lesion varies from 10 to 55% in the first year, and affecting 10% of the remaining women with each additional passing year, and hence
because of the risk of recurrence, by the laparoscopy, we will suppress the disease, and then there will be the need of treatment in the form of ovulation induction, plus minus assisted reproductive technique post अभी operatively. आगे की बात बाद में करना है, ठीक है? तो आपने सर्जरी का सीखा है, राइट? जी मैम। ठीक है, गुड। किसी ने भी चैट के अंदर बड़ी अच्छी एक बात लिखी हुई है, वो आप लोग भी पढ़ लो, डॉक्टर सदफ ने, कि आपने काउंसिल किया द एम ऑफ मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजमेंट। अभी जो सबीन बता रही है, शी इज टेलिंग अस एक्चुअली एम ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि जो प्लान या ट्रीटमेंट पूरी है वो फिर जरा एलैबोरेटेड होगी। एक्चुअली आप सबीन ने एक 1 2 3 पॉइंट करके एक दफा एक पूरा मैपिंग कर दी कि हाउ शी गोइंग टू मैनेज द पेशेंट, ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए, चाहे बेल भी बज जाए तो पता हो कि आप इस तरीके से जा रहे हो, विच इज अ गुड थिंग टू डू एक्चुअली। कि इसने काउंसिल भी कर दिया, इसने ट्रीटमेंट में सर्जरी भी बता दी है, थोड़ा सा वो करके कि लेप्रोस्कोपी है, उसमें हम ट्यूबल पेटेंसी भी देख लेंगे, इट्स गोल्ड स्टैंडर्ड, और हम एंडोमेट्रियोसिस भी ट्रीट करेंगे, और फिर वो पोस्ट ऑपरेटिवली भी लेगी। लेकिन इस दौरान से भी एक चीज आप मिस कर गए हो, जो कि है तो बड़ी छोटी सी चीज, लेकिन उसको साथ साथ आपने वही, जिस तरह मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन एक साइड पर लिखी होंगी, और कोई भी पॉजिटिव इन्वेस्टिगेशन है ना तो आपने वहीं पे कवर कर लेनी है। आपको मैंने कोई दी नहीं पॉजिटिव इन्वेस्टिगेशन, ताकि हम जरा फोकस्ड हैं। एक यूरिन में पस सेल्स दे दिए थे, 8 to 10 पस सेल्स, तो आप थोड़ा सा उससे रिलेटेड भी बात कर लोगे कि चलो कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट नहीं मैं भेज दूंगी, बट एम्पेरिकली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा पेन उसकी वजह से भी रिलेट हो सकता है। बोला है ठीक है मैडम। ना? बोला है, आई डोंट नो व्हाई आई मिस्ड इट, तो लेकिन बोला है तो और भी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, यू हैव कवर्ड इट। तो सर्जरी पे आ जाते हैं, वो हाउ आर यू गोइंग टू डू द सर्जरी, और वो सारा प्रोसीजर बताओ। मैडम इसके बाद ये है कि एम ऑफ मैनेजमेंट भी मैं बताऊंगी अपना, कि माय एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट एंड टू मेक द पेशेंट सिम्टम फ्री एंड इम्प्रूव द चांसेस ऑफ हर फर्टिलिटी, एंड गुड। आई विल इन्वॉल्व मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अब इंक्लूडिंग ये आपका जो एम था ना, ये एम ऑफ सर्जरी भी है एक्चुअली। सो व्हेन जी वी आर टॉकिंग अबाउट सर्जरी, एग्जामिनर ने बात कर ली और आपको इतनी अच्छी सी कोई बात याद आ गई है, जैसे अभी आपने बात की है, तो आप उसको सवाल से रिलेट करके बोल दो ना कि माय एम फॉर द सर्जरी विल बी दिस, एंड देन अगेन इसमें एक चीज और ऐड कर दो, स्टेजिंग ऑफ द डिजीज। एंडोमेट्रियोसिस की जब हम सर्जरी करते हैं तो उसमें स्टेजिंग भी तो साथ करते हैं। वो सर्जरी में बताती हूँ मैं फिर। मैडम फिर देन planning surgery for planning of involve multidisciplinary team including myself, neurologist and a histopathologist. Then I take prior to the surgery, I will take informed written consent about from the patient about the anesthesia and its complications, laparoscopy and risk of bowel, bladder, and ureteric injury or major vessel injury. And in case of any complication, I may proceed to laparotomy. Then I prepare my patient for the surgery and I will review all her labs and take anesthesia fitness, cross match and arrange 2 pints of blood and will check the consent. Then one night prior to the surgery, I will advise the patient to clean and shave the operative area and will provide the gown, keep NPO from midnight and give clean enema at 12 a.m. and 6 a.m. And I will make sure that right patient and right file reaches the OT. In the OT, after review by the anesthetist, induction of anesthesia, gowning, gloving, cleaning, and draping, I will do laparoscopy. And during laparoscopy, I will inspect. First of all, I will inspect the uterus, bilateral ovaries, fallopian tubes, pouch of Douglas, peritoneum, and parametrium to see the extent and severity of disease and to score it. And during laparoscopy, I will remove all the visible endometriotic deposits by excision, enucleation, and ablation. I will identify for the endometrioma. I will identify the tissue plane and will do careful dissection of the endometrioma, followed by laparoscopic suturing for the hemostasis. And I will maximally avoid diathermy to avoid damaging the ovarian reserves. And then I will do dye test to see the tubal patency and will secure hemostasis. And after that, I will, at the end of after the completing the procedure, I will send the tissue for histopathology and will document my procedure. ट्यूबल पेटेंसी चेक की है इसमें आपने? मैडम की है। अच्छा ठीक है, देखो गुड। इसके अंदर अब एक चीज जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल अगर कोई बनाने की कोशिश करे, तो हाउ विल यू जस्टिफाई इट कि आपने जब इंट्राऑपरेटिवली पोर्ट डाला है तो इट्स नॉट एंडोमेट्रियोसिस, इट्स अ कॉम्प्लेक्स ओवेरियन मास। क्योंकि एक चीज बताती हूँ,
आपने इसके अंदर CA125 ट्यूबरक्लोसिस के अंदर भी हाई आता है, कॉम्प्लेक्स मैथ्स भी इसमें आता है। हाँ, IGRA टेस्ट अगर आप करा लो तो वो फिर भी आपको हेल्प आउट कर देगा, बट इवन देन इट्स नेवर 100%। इंट्रा ऑपरेटिवली कुछ भी आ सकता है बिकॉज हिस्टोपैथोलॉजी इज 100%। देन अगेन आपको व्हाट इफ इट्स अ कॉम्प्लेक्स ओवेरियन मास? Madam, as I have already told that I will involve the multidisciplinary team. So at the time of the, if the features of the cyst are consistent with the complex ovarian cyst, then I will send the specimen for histopathology and frozen section. And Yes. if it turn out to be malignant, then I will counsel the attendants. I will do for proceed for unilateral इट oophorectomy. डिपेंड्स ऑन द स्टेजिंग। द थिंग इज कि बिल्कुल ठीक है, इसमें एक स्टेटमेंट बस आपने ऐड करनी है। जब आपने शुरू में काउंसलिंग की है, बेशक इट वाज एंडोमेट्रियोसिस, योर डायग्नोसिस वाज एंडोमेट्रियोसिस, बट अगेन यू सेड अनलेस प्रूवन विद द हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट। अब बात आपने की है, बट इसके अंदर साथ ही आप कहो कि इट कैन बी वेरी लेस चांसेस बट इट कैन बी द मैलिग्नेंट मास इन दैट केस, बिकॉज पेशेंट को कुछ तो आइडिया हो। व्हाट इफ पेशेंट, अगर पेशेंट उठी है और उसको तब पता चला है कि ये तो उसकी तो क्लियरेंस हो गई है या उसकी तो फ्रैक्टमी हो गई है, तो वो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। तो कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स मैस है, इसके अंदर दो बताया और उसके बाद आपने उसको फर्दर अकॉर्डिंगली मैनेज किया। दूसरी ऑप्शन ये है कि यू गो अहेड विद द सर्जरी, यू डोंट डू एनीथिंग। अगर आपको इंट्राऑपरेटिवली एंडोमेट्रियोसिस नहीं मिला एंड यू डोंट हैव द फैसिलिटी ऑफ फ्रोजन सेक्शन, या फॉर सम रीजन इन एग्जाम you missed to talk about frozen section or you missed to talk about the malignant mass because आपको इतना क्लियर था endometriosis का केस कि आप भूल गए कि बिकॉज आप सब इंसान है, एग्जाम का डर ही इतना और होता है, और क्या भूल गए कि इट कैन कम आउट टू बी कॉम्प्लेक्स ओवेरियन मास लेटर ऑन। और आप बात करके और एग्जामिनर ने आपसे बात की जैसे मैंने अभी बात की है, वैसे तो सभी ने अच्छा संभाला है, लेकिन आप अगर कह सकते हो कि यू डोंट हैव फैसिलिटी ऑफ फ्रोजन सेक्शन, इसलिए आप बायोप्सी लेके बंद कर दोगे। और फिर उसके बाद बायोप्सी पे डिपेंड करेगा, अगर इट कम्स आउट टू बी मैलिग्नेंट तो फिर आप पेशेंट और अटेंडेंट्स को काउंसल करके अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ द डिजीज उसकी फिर अकॉर्डिंगली क्लियरेंस सर्जरी आफ्टर, आप विद इन 1 वीक भी उसकी सर्जरी डिसाइड कर सर्जरी कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेट ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंसी इज क्लियरेंस। तो आप अकॉर्डिंगली स्टेज के ऊपर डिपेंड करके, वो तो सिर्फ वन ही है जिसके अंदर आप ओफरेक्टमी या सिस्टेक्टमी करके उसे फर्टिलिटी पूरी करने का कहते हो, एंड देन यू डू द क्लियरेंस लेटर ऑन आफ्टर उसकी जब व्हेन शी इज कंप्लीटेड विद हर फैमिली। बट Ma'am, वरना that's तो why आप I inquired. आप उसको पोस्ट ऑपरेटिवली देन यू कैन काउंसल देम अकॉर्डिंगली एंड देन। हाँ जी मैडम, इसमें ये भी एक पॉइंट है कि जी। अगर ये होता है तो बिकॉज आई हैव अंडरवेंट द इन्वेस्टिगेशन so briefly that I have asked on the ultrasound scan either it was unilateral, bilateral, solid cystic, multilocular, unilocular. I have excluded all the points on the But again, it's ultrasound not scan. 100%. It's not 100%. Endometriosis can be bilateral. Endometriosis can be complex. Endometriosis can have blood flow. Endometriosis can have thick septi. तो इसका M score high हो सकता है, but again, it may not be malignant. ठीक है ना? ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूबरक्लोसिस और CA, ये तीन चीजें ओवरलैपिंग है। इनकी कोई भी 100% इन्वेस्टिगेशन नहीं है अदर देन द बायोप्सी रिपोर्ट, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट। तो ये ओवरलैपिंग चीजें हैं, तो आप तो इसको सेफ रहते हुए आप चलोगे। नो डाउट इट्स एंडोमेट्रियोसिस, जो सारी मैनेजमेंट की वो बिल्कुल ठीक थी, इंट्राऑपरेटिवली यू टोल्ड अस अबाउट वेरी गुड थिंग। ये तो वो बात है जो लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं। अब अगर इफ यू डोंट हैव फैसिलिटी ऑफ लेप्रोस्कोपी देन व्हाट विल यू डू? मैडम, यू नीड टू नो दैट एज वेल। हमारे तो 90% लोगों को नहीं आता, नहीं लेप्रोस्कोपी का है फैसिलिटी। मैडम, एक बात मैं और पूछना चाह रही थी, वो मैं आपका आंसर देती हूँ मैडम, कि ये पूछना चाह रही थी कि अगर हमारे पास ये जैसे हम कंसेंट ले रहे हैं तो रिस्क ऑफ रीलिप्रोटमी भी हम कंसेंट में ऐड करें? कर दो, वो तो हर एक में है ना। रीलेप्रोटमी में खुदा ना खास्ता कोई, जिस तरह आपने बावल इंजरी, यूरिटेरिक इंजरी, वो सब बातें की हैं, तो दोबारा से इसके अंदर तो स्पेसिफिकली बिकॉज यू नेवर नो इफ शी कम्स आउट टू बी मैलिग्नेंट ना, ठीक है ना, तो इसके अंदर बिल्कुल रिस्क ऑफ रीलेप्रोटमी इस वजह से भी हो सकता है। जब आप ओपन सर्जरी कर रहे होगे ना, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू विल टॉक अबाउट ओपन सर्जरी इन एग्जाम, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर्स इन आवर कंट्री विल वुड लाइक टू टॉक अबाउट ओपन सर्जरी मोर। आप उसमें यूं कहोगे कि आई विल गिव ऑप्शंस टू द पेशेंट फॉर द मोड ऑफ सर्जरी,
नंबर वन इज लेप्रोस्कोपी बिकॉज इट्स गोल्ड स्टैंडर्ड, उसको बताना जरूरी है ताकि अगर बिकॉज पेशेंट को तो पता ना उसके लिए बेहतर क्या, शी कैन ऑलवेज गो टू अ सेंटर जहाँ पे लेप्रोस्कोपी की जाती है। तो आप नंबर वन पे लेप्रोस्कोपी, बट इन माय सेंटर आई डोंट हैव अ फैसिलिटी और पेशेंट डजंट अफोर्ड टू गो टू एनी ऑफ द सेंटर फॉर द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सो आई विल गो विद द ओपन सर्जरी। फिर ओपन सर्जरी के अंदर बात आ जाती है बिकॉज ठीक है फ्रॉम हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन यू नो इट्स endometriosis, but are you like going to go ahead with the phalansteal incision, with the midline incision? ये इस पे बात होगी। नंबर टू पे ये because at the moment you don't know exactly it's endometriosis or it's a malignant mass, तो जैसे ही पेरिटोनियम खोलिया आपने वहीं पे पेरिटोनियल वॉशिंग भी ले लेनी है बिकॉज आप कभी भी कैन नेवर कम बैक और डू एनी स्टेप जो कि आप मिस करते गए, सो आपने वहीं पे पेरिटोनियल वॉशिंग लेनी है, देन यू डू इंस्पेक्शन। वो सारा जिस तरह के सभी ने इंट्रोपरेटिव फाइंडिंग्स में बोला है लेप्रोस्कोपी में उसी तरह। फिर एंडोमेट्रियो आपने अपनी तरफ से बोला है कि इट इज एंडोमेट्रियोसिस, आपने बात ही कोई और नहीं करनी एक्सेप्ट कि एग्जामिनर रोक के कहे कि नहीं व्हाट इफ इट्स अ कॉम्प्लेक्स मास और व्हाट इफ इट्स ट्यूबरक्लोसिस एंड व्हाट इफ इट्स एक्सेट्रा वो सारी बात। ट्यूबरक्लोसिस के अंदर ज्यादा पंगा नहीं लेना, अगर आपको ग्रैनुलोमास मिल गए हैं, ट्यूबरक्लोसिस वाला सारा मिल गया पिक्चर या आपको फ्रोजन सेक्शन में तो एएफबी का आपको आपने कर लिया या इंट्राऑपरेटिवली पता चल जाता है तो बहुत ज्यादा उसमें क्लियरेंस और उसकी जरूरत नहीं होती, पेशेंट को बंद कर देते हैं और एटीटी देते हैं पहले, फिर उसके बाद आप देखते हो क्या करना है, ठीक है ना। मैम मुझे तो क्वेश्चन पूछना आपने था। जी मैम जी अभी आपने बताया कि हम ओपन सर्जरी करेंगे, पेशेंट को ऑप्शन देंगे लेप्रोस्कोपी एंड ओपन, और हमारे पास ओपन होती है नॉर्मली, सो आफ्टर ओपनिंग एब्डोमेन पेरिटोनियम में गए हाँ तो इवन विद एंडोमेट्रियमा हम लोग वो फ्लूइड फॉर साइटोलॉजी लेंगे जैसे नॉर्मल स्टेजिंग का होता है, वही प्रोटोकॉल करेंगे? नहीं अभी तो हमें पता नहीं ना, जब आपने एब्डोमेन खोला तो फिर खोलते ही तो नहीं ना एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट मिल जाती, वो तो मैनिपुलेट करने के बाद मिलती है। जो पेरिटोनियल वॉशिंग है वो तो पेरिटोनियम खोलते ही आप उसकी वॉशिंग ले लेते हो या साइटिक फ्लूइड है तो वो ले लेते हो, आप मैनिपुलेट तो बाद में करते हो ना। तो आपने जब पेरिटोनियम खोली वॉशिंग ले ली उसके बाद मैनिपुलेट करो, एंडोमेट्रियोसिस हुआ भी तो आप फिर वॉशिंग ना भेजना साइटोलॉजी के लिए। मतलब अगर एंडोमेट्रियोसिस ठीक निकला है तो ना। पेरिटोनियल वॉशिंग्स नहीं भेजनी, इस तरीके का है ना, लेकिन लेनी जरूर है पहले। हाँ वो तो आपने इसलिए लिया कि उस वक्त ले लेनी है क्योंकि आप वापस जाके दोबारा तो नहीं ले सकते ना, जब आपने मैनिपुलेट कर दिया मैथ्स को तो उसके बाद तो नहीं ना, क्या पता अगर आप मैनिपुलेट करते हुए कोई ब्लीडिंग हो जाए कुछ हो जाए फिर आप किधर से वॉशिंग लोगे, बट इट कम्स आउट टू बी मैलिग्नेंट लेटर ऑन, तो वो तो नहीं आप कर सकते ना। मैडम फिर ठीक है इसकी मैनेजमेंट में फर्दर ये भी तो इस बताऊंगी, तरीके से शी वाज अ केस ऑफ सबफर्टिलिटी, so then I will tell that once her surgery is completed and my patient यस comes back with the histopathology report, I will after 1 month of surgery I will offer her induction of labor with the वेरी गुड, एज सुन एज पॉसिबल, बिल्कुल ठीक है, या ओवुलेशन दे दो या आईयूआई करा लो, वो बात देख लो कि किस तरीके मैडम से आप करना है, उसकी एक इंडक्शन, ट्यूब भी कमेंट आप कर दोगे। ठीक है मैडम, इसके इंडक्शन जो करेंगे वो कैसे करेंगे, क्लोमिट से ही करेंगे? जैसे नॉर्मली करते हैं, ठीक है। और फिर आपने पहले इंडक्शन में अपने पेशेंट को कंसीव करा देना है, अच्छा अच्छा एंडिंग करनी है। आपने इंट्राऑपरेटिव भी बड़ी सिंपल फाइंडिंग्स रखनी है एक्सेप्ट के एग्जामिनर रोक के आपको पाए, आपने कहना एंडोमेट्रियोमा है जैसे किसी भी ने बताया राइट साइड पे था, साथ ही बता दो कि दूसरी ओवरी ट्यूब नॉर्मल थी, ट्यूबल पेटेंसी भी पॉजिटिव कर दो, एंडोमेट्रियोमा को एक्साइज कर दिया जैसे इंट्राऑपरेटिवली सभी ने हमें सारा बताया, और उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिवली ओवुलेशन इंडक्शन करके वहीं कंसीव करा दो। ठीक है, अपनी तरफ से ये करना है एक्सेप्ट एग्जामिनर रोक के कह व्हाट अबाउट द मेडिकल मैनेजमेंट आफ्टर सर्जरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आप बता दो कि अब जो लेटेस्ट स्टडीज है दे आर मोर टुवर्ड्स making patient go for the fertility treatment instead of going for the medical management because first year of surgery में maximum chances होते हैं conceive करने के endometriosis में। किसी ने चैट में एक दो क्वेश्चंस किए हुए हैं उस पर बात कर लेते हैं कि if it's a complex mass and we take biopsy we will not upstage। अच्छा अगर कॉम्प्लेक्स मैस है तो जाहिर है बायोप्सी लेते हुए अपस्टेजिंग का चांस होता है, उसको मिनिमल मिनिमल रखते हुए ही करेंगे, या तो एज अ होल ओवेरियन सिस्ट निकालेंगे या फिर उसका इस तरह का पोर्शन के स्पिलेज ना हो, यस स्पिलेज कैन अपस्टेज द डिजीज, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर टेकिंग बायोप्सी फॉर द फ्रोजन सेक्शन। बट अगेन एग्जाम में आपने इसी तरह बात करनी है कि ना तो स्पिलेज हुई है और बायोप्सी भी आराम से आ गई, अदरवाइज यस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक बायोप्सी फ्रॉम अ मैलिग्नेंट मास especially in ovarian CA. Type of incision because the history is more towards endometriosis, investigations and वो सारी चीजें are going more towards endometriosis than the transverse incision is better. Midline incision इस तरह के पेशेंट में थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है, however अगर कोई midline देना चाहता है तो आप वो भी जस्टिफाई कर सकते हो because you never know, it's never 100% कि ये malignant नहीं है,
But as the history is more towards endometriosis, investigation, examination, everything is more towards endometriosis than lower transfer sensation. ठीक है, because lower transfer is मैडम always एक क्वेश्चन है, मैडम एक क्वेश्चन है मैम मैंने मैम। क्वेश्चन देखी थी चलो एक एक करके पूछ लो जी सायरा सायरा। चलिए पूछ जी मैम। पूछ मैडम से मैंने आप। पेशेंट देखी थी, उसकी 13 इयर्स की इनफर्टिलिटी थी, एंडोमेट्रोसिस की ही वो थी। अब वो ठीक है पेशेंट कहती है कि वो ओवुलेशन इंडक्शन कोई 7-8 बार बताती है ले चुकी है, जिसमें वो बताती है उसके फॉलिकल भी ट्रैकिंग हो रही थी। अब इस पेशेंट का जब हम एंडोमेट्रियोमा निकाल देंगे, 13 इयर्स की इनफर्टिलिटी है, अब हिस्ट्री से तो लग रहा है कि उसने बहुत अच्छी जगह से ओवुलेशन इंडक्शन ली है, तो क्या दोबारा हम उसे क्लोमिड से इंड्यूस करेंगे? आप उसको उसी से इंड्यूस करोगे जिससे वो उसने अच्छा रिस्पांस दिया था। अगर उसको क्लोमिड से ओवम बन गए थे तो क्लोमिड से ही करोगे, जिसको वो उसने रिस्पॉन्ड किया वही डोज उतने में ही मैम दे दोगे। वो तो हम 5-6 मतलब देखिए इसमें तो पैथोलॉजी थी पहले, शायद वो इसलिए नहीं कंसीव करी थी, लेकिन जो कहते हैं कि 6 साइकिल्स बस देने हैं, फिर उस चीज को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हम। ओवुलेशन इंडक्शन देने का भी एक तरीका है, वो वैसे ये तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी और उसमें ज्यादा बात होती है ओवुलेशन इंडक्शन पे, मैं बता देती हूँ जल्दी से। उसके अंदर होता है कि फर्स्ट 3 months एंड देन नेक्स्ट 3 months। फर्स्ट 3 months आप कहोगे कि आई विल गिव हर फॉर एग्जांपल क्लोमिफेन सिट्रेट this much particular dose, but during every month I would like to see her response in terms of ovulation and pregnancy. If there is no pregnancy but ovulation is there, then I will continue the dose for the next 3 months. 3 months के बाद जाके ओवुलेशन होती आ रही है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, यू कैन चेंज द ब्रांड और यू कैन लाइक क्लोमिफेन से आप उसको एरोमेटेज इनहिबिटर पे कर सकते हो। बट अगेन अगर ओवुलेशन उसकी हो रही है एंड यू वांट टू कंटिन्यू विद द सेम, बिकॉज आपका मकसद विद ओवुलेशन इंडक्शन इज टू अचीव ओवुलेशन। अगर 50 mg ओडी पे भी ओवुलेशन अचीव हो गई है तो फिर 50 mg ओडी विद क्लोमिफेन सिट्रेट आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। इवन फॉर 6 months यू कैन कंटिन्यू विद दिस बिकॉज यू आर हैविंग गुड ओवुलेशन। फिर आप कहोगे कि आफ्टर एवरी मंथ आई विल चेक हर रिस्पांस, इफ देयर इज नो ओवुलेशन तो उसी अगले ही महीने या तो डोज बढ़ा दोगे एक्सक्यूज मी, या फिर आप उसको उसका ड्रग बदल दोगे, यानी क्लोमिफेन सिट्रेट से उसको एरोमेटेज इनहिबिटर पे कर दोगे। ठीक है जी Madam, मैम, can we थैंक offer यू। ovulation in this patient in the same month of laparoscopy because नो हम नो शी नीड्स टू next month? रिकवर, ऐसे भी नहीं। हाँ मैम कितना मैम एक कितने पेशेंट टाइम के देखी थी बाद मैंने देखो इसके कोई सॉरी इसके पर्टिकुलर कुछ नहीं है कि कितना टाइम कहीं लिखा नहीं हुआ, बट एट टाइम्स कहते हैं कि 2 months भी हो जाते हैं बिकॉज यू कैन एंड अप इन कम चांसेस है, बट व्हाट इफ ओवुलेशन इंफेक्शन से ओएचएसएस पे एंड अप हो जाए। अच्छा मैम, तो इसका मकसद है एंडोमेट्रियोसिस के केस को हम ओपन ऐसे ही करेंगे जैसे सस्पेक्टेड सी ओवरी को। यस, सो दैट यू शुड नॉट मिस एनीथिंग। ओके, और मैम कंसेंट भी उसी तरह लेके चलेंगे? कंसेंट आपने नहीं लेनी, पहले इतना डराने की जरूरत नहीं। आप ये कह सकते हो कि आई एम अरेंजिंग फ्रोजन सेक्शन एट द सेम टाइम द केस सीम्स मोर टू बी एंडोमेट्रियोसिस, जो अटेंडेंट्स को काउंसल करना है। हाउएवर आई विल कीप अरेंजमेंट ऑफ द फ्रोजन सेक्शन ताकि अगर इंट्राऑपरेटिवली कुछ हो तो फ्रोजन सेक्शन पे डिसाइड हो कि क्या करना है। और एग्जाम के अंदर तो इंट्राऑपरेटिवली सीधा सीधा ही रखना है कि फ्रोजन सेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज इफ यू गेट चॉकलेट मटेरियल इंट्राऑपरेटिवली तो फिर तो कुछ और रह नहीं गया, ये तो डायग्नोसिस बन गया ना। डॉक्टर पोस्ट और मैम मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे ओवेरियन सप्रेशन के लिए? अब एंडोमेट्रियोसिस के अंदर अगर आपने एंडोमेट्रियोमा की क्लियरेंस कर दिया और ट्यूबल पेटेंसी है तो इट्स बेटर टू मेक हर गो फॉर द फर्टिलिटी ट्रीटमेंट इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर एंडोमेट्रियोसिस। मैडम हमारे Ma'am, पेशेंट stage की हमने 3 ओपन and 4. सर्जरी की, मैडम हमने तो ओपन सर्जरी करनी है कि मतलब लेप्रोस्कोपी पे हमें कहते हैं कि एग्जाम में ना जाओ, एंडोमेट्रियोसिस की ओपन ये सर्जरी बात कर नहीं दो। है, एग्जाम में क्यों ना जाओ, आपने सबसे पहले सारी ऑप्शंस देनी है कि किस मोड ऑफ सर्जरी में करना है। जो बेहतर है लेप्रोस्कोपी बेहतर है तो पहले लेप्रोस्कोपी की बात, बट बिकॉज फैसिलिटी इज नॉट देयर तो यू विल गो फॉर द ओपन सर्जरी। मैडम मैं अगर ओपन सर्जरी करती हूँ, फिर उसके बाद मैंने 3 मंथ्स मैंने पढ़ा था कि मतलब सुना था कि वो रिकवरी टाइम देना है। अगर मैं उसे 3 मंथ्स टाइम देती हूँ, उसमें पेशेंट फिर आप उसे ब्लीड, मेडिकल ट्रीटमेंट दे दो मैं ताकि उसे उसकी सप्रेशन प्रोग्रेशन करूँ है। ना? हाँ जी अगर आप थैंक 3 यू। months दे रहे हो तो फिर करोगे। क्या थैंक यू। देंगे डॉक्टर? You can give her continuous progesterone, you can give her continuous OCPs, you can give her Zoladex. Tricyclic OCPs. थैंक यू। ठीक है, चलो इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात। आप मैम लोग फिर मेरा एक अब क्वेश्चन था कर लो, मैम हाँ एक जल्दी पेशेंट से आप कर देखी लो। थी 26 ईयर अनमैरिड थी तो क्वेश्चन पूछ मैम लो। उसकी हिस्ट्री थी
प्रेजेंटिंग मैम कंप्लेंट। मैंने पूछना था हाँ कि पहले डॉक्टर साहबा कर रही है। एक पेशेंट हाँ 1 मिनट अफशीन, पूछ सॉरी, रही पहले हूँ उन्हें करने दो। अभी। हाँ हाँ बोले 26 बोले इयर्स जी की मैम, अनमैरिड लड़की जी। थी और उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी लोअर एब्डोमिनल पेन एंड मैस एब्डोमेन था, 1 ईयर सिस की थी हिस्ट्री। 11 into 13 सेंटीमीटर की। तो मैडम इसकी जो थी, इसका जो उन्होंने बाकी ट्यूमर मार्कर्स नहीं करवाए हुए थे, सिर्फ CA-125 करवाया हुआ था और वो 367 तक रेस था, और ये उसके अंदर एक ब्लड ही फ्लो भी केस है दिया हुआ था अफशीन, सिस्ट में और मल्टी लोकुलेशंस भी दी हुई थी। ये अनमैरिड 26 ही है इसमें। जी नहीं मैम, ये बीच में इंटरप्शन हो गई है, मेरा अच्छा केस अच्छा पूरा अफशीन जी, एक होगा एक ही तो मिनट, केस है ये। पूछने पहले एक मिनट। नहीं मैम। एक ही केस है वो अच्छा कह अच्छा रही है। ठीक। एक ही केस अफशीन है? एक नहीं, एक ही मिनट। केस तो नहीं है। अच्छा नहीं मैम, एक केस जी नहीं है मैम। 26 इयर्स की लड़की थी, अनमैरिड थी, प्रेजेंटेड विद द लोअर एब्डोमिनल पेन एंड mass abdomen from last 1 year, and on examination it was 20 week size mass and occupying the umbilical hypogastric and both iliac region. It was restricted mobility and solid consistency, and मैम पेन भी था पेशेंट को और ascites shifting dullness भी पॉजिटिव थी मैम। अब उसकी हिस्ट्री 1 ईयर की थी, कोई उसमें सिम्टम्स नहीं थे, कोई वेट लॉस नहीं था, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी मैम। इस तरह के मरीज को अब हमारा उसके एज के हिसाब से, उसकी हिस्ट्री के हिसाब से तो जा रहा था बिनाइन की तरफ, लेकिन उसके मैथ्स के हिसाब से जा रहा था मैलिग्नेंट की तरफ। उसमें हम पहला अपना डिफरेंशियल बिनाइन कॉम्प्लेक्स मैथ्स बनाएंगे या फिर मैलिग्नेंट बनाएंगे? मैंने ये पूछना था। हेलो मैडम आपका माइक ऑफ है। सॉरी 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 सॉरी। हाँ अच्छा मैं ये कह रही थी कि आप इसके डीडी के अंदर ज्यादा, बिकॉज टीवीएस उस वक्त तक उन्होंने दिया नहीं होगा, ट्यूमर वापस आप मांग नहीं सकोगे क्योंकि टीवीएस की रिपोर्ट नहीं है और आपने डीडी बताना होगा। तो आप उसके अंदर नंबर 1 पे B9 और malignant ovarian mass नंबर 1 पे कर दो, और नंबर 2 पे whatever अगर आपको फाइब्रॉइड लग रहा है जो भी इस तरीके से। लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर टू टॉक अबाउट थिंग्स विच आर मोर कॉमन। सो B9 आर मोर कॉमन देन malignant, तो आप पहले B9 का और फिर malignant का। मैम ट्यूबो वेरिएंट मैथ्स डायरेक्टली बोल सकते हैं पहले, बस हाँ बिनाइन और मैलिग्नेंट पे ही रहे? पहले बिनाइन और malignant बोलते हैं। ट्यूबो वेरिएंट एक इम्पैक्ट आता है कि एब्सेस या ट्यूबर जिसमें हाँ ट्यूब्स जी और मैम, ओवरी इन्वॉल्व हो जाए क्योंकि तो 1 ईयर की उसकी क्रॉनिक हिस्ट्री थी और 3 डेज की एक्यूट कंप्लेंट्स थी कि सिवियर पेन हुआ, वो रिटेंशन तो हुई, उसने कॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल टॉर्जन इमरजेंसी हो में सकती प्रेजेंट है ना, किया। वो टॉर्जन आप कहोगे कॉम्प्लिकेटेड ओवेरियन सिस्ट में भी B9 और malignant। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है मैम जी। एक लास्ट अफशीन अब क्वेश्चन आप है। बता दो। जी हाँ मैडम, पहले मैडम पहले पेशेंट है, मैडम पेशेंट मैरिड से 16 years है, प्रेजेंट किया विद प्राइमरी सबफर्टिलिटी एंड HMB since 2 years and abdominal mass since 1.5 years. On examination, 18-week size mass, firm inconsistency, smooth surface, irregular margins, lower limit not reachable, shifting dullness positive. And on bimanual examination, 18-week size mass, firm inconsistency, not well separated from the uterus, and fullness in both head and neck. मैडम जब इसकी स्कैन की थी रिपोर्ट, उसके ऊपर इसका फाइब्रॉइड था, पोस्टीरियर वॉल ठीक फाइब्रॉइड है। था और 11 into 13 सेंटीमीटर की इस पेशेंट की सिस्ट थी, मल्टी लोकुलेटेड सिस्ट थी, सॉलिड एरियाज भी थे और ब्लड फ्लो भी दिया हुआ था। ये वाला सिनेरियो था। अब हम मैडम दो ये डुअल पैथोलॉजी आ गई ना। जी डुअल पैथोलॉजी आ गई। अब मैं देखिए मैडम, मैं अब ये पूछना चाह रही हूँ, क्या इसको अब हम एंडोमेट्रोसिस, इस वाली सिस्ट को देखें, आप कह रही हैं कि एक कॉम्प्लेक्स और एंडोमेट्रोमा के सेम फीचर शेयर होते हैं, तो फिर क्या अब हम इसको क्या रखेंगे, इस ये जो मैस है इसको हम एंडोमेट्रोमा सस्पेक्ट कर सकते हैं, ऑल्दो हर बिल्कुल हिस्ट्री नॉट सजेस्टिव ऑफ डिस्पिरोनिया हाँ एंड बट इट कैन डिस्चीजिया बी एंड डिस्यूरिया? एंडोमेट्रियोसिस विद फाइब्रॉइड बड़ी कॉमन है। आई थिंक इसका इंसिडेंस एग्जैक्ट वैसे देख लेना, मेरा ख्याल है 20% के अराउंड है। तो यस आप इसको नंबर 1 पे, इट्स अ डुअल पैथोलॉजी ना, जब डीडी पूछेंगे तो इट्स अ डुअल पैथोलॉजी, फाइब्रॉइड यूट्रस विद B9 और malignant ovarian mass आप कहोगे। अगर और इलेबोरेट करना है तो फाइब्रॉइड विद एंडोमेट्रियोमा कह सकते हो। बिल्कुल और डॉक्टर रूबा, इसका ना CA-125 367 था ये, और बाकी ठीक है। ट्यूबर मार्कर्स नहीं हुए थे, तो अगर हाँ जी अगर फीचर्स पे जाएं तो एम नहीं नहीं ठीक है, इसको कंपोनेंट्स सिंपल हैं, ही रखो। ट्यूमर मार्कर्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ CA-125 361 अवेलेबल है। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है तो इसको फाइब्रॉइड विद एंडोमेट्रियोमा। फिर हम इसके अंदर फर्टिलिटी स्क्रीनिंग सर्जरी करेंगे अगर हम इसको मेलिग्नेंसी की तरफ लेके जाएंगे, या फिर इसको नहीं फर्टिलिटी स्पेयरिंग तो तब है जब इंट्रा ऑपरेटिव स्टेज पे डिपेंड करेगा ना, अगर 1A1 है तो फिर फर्टिलिटी स्पेयरिंग होगी। आपने एसआईटीज भी कही है ना डॉक्टर अफशीन? हाँ जी साइटिस भी थी इसको ना। ठीक है अगर तो malignant है तो फिर आप ascites भी है तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर CT एज वेल, और C1 to 5 बॉर्डर लाइंस है, कराने में हर्ज नहीं है CT के साथ।
ठीक है, और नरीन और बता बाकी ट्यूमर मार्कर्स भी पहले कराएंगे या फिर कराएंगे, उनको ऑफ डिस्टर्मिनोमा के? कोर्स कराएंगे बिल्कुल। मैडम मैं बस इसमें ये कंफ्यूज हो रही हूँ कि इसको भी एंडोमेट्रियोमा हम सस्पेक्ट कर सकते हैं या नहीं? में आएगा बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ओके नरीन का मैडम, मुझे स्कैन तो मिला नहीं होगा मैम। देखिए 18 वीक साइज उसको फाइब्रॉइड यूट्रस तो है, स्कैन मुझे मिला नहीं होगा। फुलनेस तो मुझे वैसे ही मिल रही है ना दोनों एडन एग्जाम में, हाँ हम डीडी वो तो डिस्कस मुझे कर वैसे ही रहे हैं मिल ना, रही है। बिल्कुल ठीक है उस जी। ठीक है, उससे पहले तो मुझे नहीं पता होगा। चलिए मेरे डीडी में एक ओवेरियन मैस आ गया, दूसरा फाइब्रॉइड मैस आ जाएगा 18 वीक साइज मैस पे, और मैं उसको स्पेसिफाई तो नहीं कर सकती क्योंकि मुझे तो एडन एग्जाम में दोनों में फुलनेस मिल रही है 18 वीक बिल्कुल साइज पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक है इसी तरह। नरीन बता दें क्या क्वेश्चन था। हेलो, कि स्टेज 3 एंड 4 में एंडोमेट्रियोसिस में चाहे पेशेंट की एज यंग एज है 20 इयर्स है 22 इयर्स है, तो उसमें आप आईवीएफ का ऑप्शन देंगे, इजंट इट? Yes, you can give option of IVF, but depends on her age. Number two, her tubal status. अगर ट्यूबे उसकी ठीक है तो आप उसको कई दफा वेरियन होता है, लेकिन बेशक स्टेज 3-4 की कैटेगरी में आ रहा होता है, लेकिन ट्यूबल पेटेंसी इतनी अच्छी होती है कि आप उसे 2 और 3 ट्रायल्स ऑफ IUI दे सकते हो। इट इज। नरीन ने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि स्टेज ऑफ द डिजीज पे भी डिपेंड करेगा। हमने तो सिंपल एंडोमेट्रियोमा लेके चले हैं ना, लेकिन अगर उसके अंदर इतनी डेंस एडिशंस है कि उसकी ट्यूब्स इत्तेफाक से ठीक हो रह गई हैं, लेकिन बाकी इतनी एडिशंस है और एग्रेसिव एंडोमेट्रियोसिस है, और आप उसे जल्दी कंसीव कराना चाहते हो, तो आप उसे ओव्यूलेशन इंडक्शन पे टाइम नहीं वेस्ट करोगे, आप उसको भले एज यंग है तो भी आप yes, देंगे आईवीएफ? 3 ट्रायल्स ऑफ IUI दे सकते हो, एंड इफ नो लक देन यू कैन गो फॉर IVF। आईयूआई और मैडम ऐसे नहीं है कि इनिशियली एंडोमेट्रियोमा IUI अगर कर आ सकते गया, हो अगर यंग ट्यूबल पेटेंसी ठीक है जी। और स्टेज सारा 1 एंड 2 मैडम में अगर मैम एंडोमेट्रियोमा आ गया, अगर स्टेज 1 एंड 2 एंडोमेट्रियोमा में आ फिर आप गया हमारे ओव्यूलेशन पास, इंडक्शन नहीं करेंगे ना? क्या नहीं करेंगे नरीन? स्टेज 1 एंड 2 में हम ओव्यूलेशन इंडक्शन हाँ का उसमें ऑप्शन तो देंगे? ठीक है, हाँ बिल्कुल ओके बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैम। मैडम अगर एंडोमेट्रियोमा आ गया है हमारे पास, इसका मतलब है कि वो माइल्ड डिजीज या मॉडरेट डिजीज तो है ही नहीं। एंडोमेट्रियोमा मोर देन यूजुअली जो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं वो तो ठीक है, बट द थिंग इज के अदरवाइज भी पीओडी में एडिशन, स्टेबल स्टेटस, ये सारी चीजें कई दफा सिंपल एंडोमेट्रियोमा में ट्यूब्स बड़ी प्यारी होती हैं और पीओडी भी ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स होते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द इट डिपेंड्स ऑन द इंट्राऑपरेटिव फाइंडिंग्स कि आपने उसका क्या करना है। ठीक है Madam, another question is from me that बस अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ बताओ सारा। मैडम ASRM में जो हम अमेरिकन सोसाइटी ASRM क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं और एंडोमेट्रियोसिस फर्टिलिटी इंडेक्स इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है उसके अंदर, उसकी क्या हमने कहाँ पे एडजस्ट करना है? You don't need to. It's quite clinical. आपका डिपेंड कर रहा है पेशेंट की एज पे। नो डाउट पेशेंट की कई एंडोमेट्रियोटिक सर्जरी के बाद पेशेंट्स वांट टू गो डायरेक्टली फॉर IVF, वो भी बुरा ऑप्शन नहीं है, बट इट्स डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पेशेंट। हर ओवेरियन रिजर्व, क्या पता वो है यंग पेशेंट ही 28 साल की है, बट उसकी दूसरी या तीसरी सर्जरी है ओवेरियन मास पे, देन अगेन आप उसको ज्यादा वेट नहीं कराओगे, उसका AMH करा के उसका। सो इट डिपेंड्स ऑन द एज, हर प्रीवियस हिस्ट्री, हर इंट्राऑपरेटिव फाइंडिंग्स। It's not just all about that ASRM or all those staging systems. So the clinical approach can be a bit different as well. It depends on the patient and the present scenario. Not relevant to the case. Score. I will stage the disease. इंट्राऑपरेटिव में आप कह सकते हो, जिक्र कर सकते हो, बिल्कुल बस उसको थोड़ा सा सुपरफिशियली ऐसे ही कहेंगे ना कि I will बिल्कुल score बिल्कुल the disease. बिल्कुल ठीक है। चलो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। डॉक्टर रूबा, आप ऐसा करना Thank you, चैट पे लिख ma'am. दो और Thank लिख you. लो, सो वी कैन ऑलवेज ma'am. हैव अ सेशन, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस इन यंग गर्ल का अगर कोई केस ले आए तो वो भी इंटरेस्टिंग होएगा जिसकी फर्टिलिटी विशेस ना हो, ताकि हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं। तो मैडम उसमें भी मैंने एक एंडोमेट्रियोसिस का केस ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट के साथ देखा है, वो डिस्कस कर ले नेक्स्ट टाइम वो भी अगर। कर लेते हैं, आप वो प्रिपेयर कर लो, ठीक है जी मैडम। इंशाल्लाह। Okay, ओके, thank you, गुड ma'am. लक, मैम मैं हाफिज। क्यूरीज हो तो ग्रुप पे कर दूं मैसेज?